آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کی حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام کربلا معلی سے لائیو آپ کے لیے ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے اور پاکستانی ٹائم کے مطابق یہ پروگرام 9 بجے رات کو اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 10 بجے اور یہاں مقامی یعنی کربلا معلی کے ٹائم کے مطابق 7:30 بجے رات یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ۔ اور اس پروگرام کا مقصد یقیناً دور دراز مناطق عالم میں جتنے بھی مومنین کرام ہیں جو کربلا کے لیے بیتابی محسوس کرتے ہیں، سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ان مومنین کے لیے خصوصی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کا ایک ہدیہ ہے یہ پروگرام کہ اس میں کال کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ کال کے ذریعے سے اپنی آواز کو کربلا تک پہنچا سکتے ہیں اور راہ دور سے زائر سید شہداء علیہ السلام بننے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کا اصل مقصد اس پروگرام کا یہی ہے کہ مومنین کال کرتے رہیں اور اپنی آوازوں کو شہر مقدس کربلا تک پہنچائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں سے جو ایک چیز مزید ایڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک عوامی ادارہ ہے اور مالی مشکلات کا بھی حالیہ میں شکار ہے، تو اس حوالے سے جو مومنین کال کرتے ہیں بلکہ جو مومنین کال نہیں بھی کرتے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہدیہ جمع کرانا چاہتے ہیں اپنی طرف سے، کوئی یا نظر کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی وجوہات شرعیہ ہے یا آپ ویسے ہی ایک معاون کی حیثیت سے اعلان کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ مستحق ہے اگر کوئی مومن اس حوالے سے مالی امداد کرنا چاہے تو ہم حاضر ہیں۔ جی سید عمران حیدر نقوی صاحب آج کے ہمارے پہلے کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، مولا علی علیہ السلام مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی جو بھی حاجات ہے قبول و مقبول فرمائے۔ آپ کی آواز اس وقت کربلا معلی تک پہنچ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجئے اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے وہ بھی کر لیجئے گا، یقیناً قبولیت کے لمحات ہے۔ بسم اللہ فرمائیں۔ السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس علیہ السلام، السلام علیکم یا ابا عبداللہ علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم وعلی علی بن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد التجا کرتا ہوں کہ اس رمضان کے مقدس مہینے کے صدقے اللہ پاک ان کے صدقے اور مولا کے آگے بھی التجا ہے کہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، الہی آمین۔ پورے خاندان سمیت اور تمام محبان محمد وال محمد جہاں جہاں بھی دنیا میں موجود ہیں سب کو کربلا کی زیارت کا شرف حاصل ہو، الہی آمین، الہی آمین آمین۔ یا رب۔
मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। और आप गालिबन हमारे स्पॉन्सर भी है पहले से, और दुआ गो है आपके लिए। जो भी आपकी शरई हाजात है अल्लाह कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह, और करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। आपसे गुजारिश है कि शाह जी आपके पास जो नंबर है इमाम हुसैन सलाम टीवी का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ताकि मज़ीद मोमिनीन भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सके। जी जरूर जरूर। शुक्रिया आपका, सलामत रहें, अल्लाह के ज़ामान में रहे, शुक्रगुजार है माशाल्लाह। सैयद इमरान हैदर नकवी साहब गुजरांवाला से माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद थे, और सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में सलाम का शर्फ हासिल किया, ज़ियारत पड़ी, और साथ में ज़ाहिर है कि बाद मोमिनीन इसमें से जिनके लिए हम हमेशा दुआ गो है ऑलरेडी हमारे साथ स्पॉन्सरशिप का ऐलान कर चुके हैं। और जिस लिस्ट के बारे में मैं आपकी खिदमत में बता रहा था कि हमारे पास हकीकतन एक लिस्ट है, और इस लिस्ट में उन मोमिनीन के नाम दर्ज किए जाते हैं कि जो इस प्रोग्राम में स्पॉन्सर बनते हैं, वलाउ कम मिकदार में नजराना भेजते हैं या ज़्यादा मिकदार में हैं, वो हर इंसान की अपनी वसअत माली पर उसका डिपेंड है। तो जिस हवाले से भी है, बहरहाल हमारी यही कोशिश है कि चाहे कम हो या ज़्यादा इस लिस्ट में उनके नाम दर्ज किए जाए, कि ये कम से कम सब्त हो जाए, और इस उन्वान से कि ये मोमिनीन खुदा में हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम है। क्योंकि करबला मोहल्ला से जिस उन्वान से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप अपने खिदमात अंजाम दे रहा है और सर्विस फराहम कर रहा है, यकीनन खादिम हज़रत अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ़ वो शख्स नहीं है कि जो हायर हुसैनी में जाके झाड़ू बरदारी करता है या साफ़ सफाई करता है या दीगर खिदमात अंजाम देता है, इदारी खिदमत, वो भी यकीनन है खुदाम है और आला दर्जे के खुदाम है। लेकिन ये भी खुदाम है, ये शख्सियात भी खुदाम है कि जो राह सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम में मेहनत करते हैं, वलाउ वो दुनिया के उस तरफ से हो। और इसके अलावा ये फ़िज़ा जो है वो काफ़ी वसी है। किस्सा फातिमा साहिबा लाला मूसा से हमारे नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, इस वक्त आपकी आवाज़ बेटा करबला मोहल्ला में है और आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप कॉल कीजिए, कॉल आपने की है तो सबसे पहले मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए और अगर कोई दुआ भी करना चाहें। बिस्मिल्लाह जी, सलाम अर्ज़ करें मौला हुसैन की खिदमत में। मैं अपने से मक्का को सलाम वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला असहाब हुसैन। मैं दुआ करती हूँ कि मौला सबको करबला में नसीब करो। ईरान, इराक, शाम और हज और उम्रा की सादत नसीब करो। मैं दुआ करती हूँ कि जो औलाद है अभी भी बात पूरी गोल का वास्ता सबको नेक और सारे औलाद अता करना। इलाही ईरान को ये दुआ करती हूँ कि ईरान को पता नसीब हो और का मिसरा को मजबूत हो। सलामत रहे बेटा, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और माशाअल्लाह मेरे ख्याल में आप पहले से आपकी वालदा जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के स्पॉन्सर बन चुके थे गालिबन, और दुआ गो है आपके लिए कि अल्लाह आप लोगों की दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और जो भी आपकी शरई हाजात है मौला मकबूल फरमाए और आप सबको करबलानी की तौफीक नसीब फरमाए। आप लोगों से गुजारिश है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के नंबर को मज़ीद भी मोमिनीन के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। शुक्रिया आपका, शुक्रिया जी। किस्सा माशाल्लाह किस्सा फातिमा साहिबा लाला मूसा से हमारे साथ कॉल भी थी और बहुत अच्छी दुआ बच्ची ने की। इसी तरीके से आप भी जो हमारी आवाज़ समात फरमा रहे हैं, अगर आपके घर में भी कोई बच्चे हैं कम से कम उनसे आप दुआ करा दीजिए, ख़ुद दुआ कीजिए। और जैसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ कि ये प्रोग्राम इसको आप इस पोजीशन में लेके जाएं कि जहाँ पर चूँकि ज़ाहिर है कि इस प्रोग्राम की
वसातत से कोशिश ये की जा रही है कि मोमिनीन को करबला से जोड़ें। संजीदा नकवी साहिबा खैरपुर मीरत से हमारी नेक्स्ट कॉलर है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है, और माशाल्लाह आप हमारी स्पॉन्सर भी है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप सलामत कीजिए और अगर कोई दुआ भी करना चाहें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या बिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फातिमा तो जरा से गाती साइबीन अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास सैयदी मोहम्मद या मेरा मम्मी अपना सैयदुल वकील अस्सलाम वालेकुम सकीना बिनत हुसैन अस्सलाम वालेकुम खौला बिनत हुसैन अस्सलाम वालेकुम शरीफ बिनत हुसैन अस्सलाम वालेकुम तशरीफ बिन अस्सलाम वालेकुम सफीनत निगात अस्सलाम वालेकुम ज़हरा अस्सलाम वालेकुम बक़यतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम फाइवसरे ज़मान अस्सलाम वालेकुम खरीब तरमान संगम मज़रमान अस्सलाम वालेकुम शरीफ कुरान अस्सलाम वालेकुम इमाम रमज़ान हाज़ा जल्ला फरजा बुसार मखरज कुबुल को अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह बरकातहू देखो करो दुरूद सलाम खान वादे अबू तालिब पर अब्बास इमाम हुसैन पर आपको लाखों दुरूद सलाम, आपके खानदान को लाखों दुरूद सलाम, और आपके खतों को अपना गलतियों को माफ कर देना। रमजान के आखिरी वक्त हैं, आखिर वक्त हैं, इस रमजान के सत्तर में हर परेशानी बलाओं से बचाना, गलतियों को माफ कर देना, सेहत अता करना, आपके के साथ सेहत अता करना मुझे, और इमाम का ज़रूर जल्दी इमाम को ज़रूर शामिल हो। परवरदिगार अपनी आंखों से मौला की देखें और मौला करबला में लगा दो, हज़रत अब्बास मेरी करबला की मोहर लगा दो, मोहरों में मर गई जाऊँ, और मेरे खतों को बख्शे, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत करना, या अल्लाह परेशानी को दूर करना, इमाम हुसैन के ज़मरे में शुमार करना, इमाम हुसैन के रोने वालों में शुमार करना, इमाम हुसैन के रज़ा में शुमार करना, बाबा हुसैन से जन्नत में दाखिल करना, इमाम हुसैन से मशहूर करवाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद पर परवरदिगार अल्लाह को जज़ाए खैर अता करे, परवरदिगार अपनी मुश्किल आसान करे, आपको कामयाबी अता हो। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, और मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअल्लाह अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप पर करबला आ सके, इंशाअल्लाह आपको ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम नसीब हो। और आपसे गुजारिश है कि हमारे नंबर्स आपके पास सेव है, आप अपने अजीज़ अकारिब रिश्तेदारों के साथ भी उसको शेयर कीजिए, ताकि इंशाअल्लाह आप जैसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मज़ीद भी इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ला सके। सलामत रहें आप, मौला के हिफ़्ज़-ओ-अमान में रहें। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। माशाअल्लाह, बहुत बेहतर। देखें, इसमें से कुछ मोमिनीन ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी स्पॉन्सर भी कर चुके हैं, और साथ में जो है वो मज़ीद भी हर महीने अपना नजराने अक़ीदत माली मुआवनत करते हैं, और इनके लिए खुसूसी दुआ गो है, बल्कि इनकी नियाबत में ज़ियारत भी पढ़ते हैं। और यकीनन इन लोगों ने, जिन मोमिनीन ने इब्तिदा में बहरहाल खैर के काम में सबकत हासिल की है, यकीनन काबिल दादो तहसीन है ये लोग। और मैं बहरहाल गुफ्तगू इस उन्वान से कर रहा था कि इंसान अगर चाहे तो खिदमत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर सकता है, और इस खिदमत के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान हतमन रोज़े हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के पास मौजूद हो। फातिमा बतूल साहिबा मुल्तान से हमारी नेक्स्ट कॉलर। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बेटा, बिस्मिल्लाह। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए, अगर दुआ करना चाहें बिस्मिल्लाह फरमाएं। इलाही आमीन। यहाँ जीजा इंशाल्लाह, और मेरे को कब्रा की मौत जाना, कब्रा जाना ना काम करना है। इलाही आमीन। और मौला को ऊपर ले जाकर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मौला जाने पर ले। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बेटा अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाल्लाह। इलाही आमीन। जाने पर ले, मौला का जाने पर ले। जी जी जी, ज़रूर, मैं आपकी तरफ से ज़ियारत पढ़ता हूँ। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माशाअल्लाह आपकी तरफ से और आपकी फैमिली की तरफ से मैंने ज़ियारत पढ़ी और अल्लाह आप लोगों को करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए अपने फैमिली के साथ, और खुसूसी आपके वालिदैन के लिए भी दुआ है। फातिमा आपसे आपके पास हमारे नंबर है, आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और मोमिनीन के साथ ग्रुप में जहाँ पर भी हो शेयर कीजिएगा, ठीक है? सही है। शुक्रिया, सलामत रहें आप। शुक्रिया जी, बहुत बेहतर। और हमारे साथ जितने भी मोमिनीन किराम है यकीनन हमारे लिए साहिब इज़्ज़त है और हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है यकीनन। और यकीनन यही लोग हैं कि जो खुदा में हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम है, खिदमत करते हैं सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की। अच्छा, इस खिदमत में देखें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी इंसान को दरपेश आते हैं। आप देखते रहते हैं, ख़बरी भी सुनते होंगे, और अपने जो आपके अजीज़ अकारिब है वो भी बाज़ ममालिक से आपको ख़बर देते हैं, फ़लाँ शख्स पे FIR कट गया, फ़लाँ शख्स पे जो है वो वहाँ पे फंसा है, फ़लाँ शख्स जो है वो इधर है, फ़लाँ शख्स वहाँ है। इतना आसान है भी नहीं कि हर शख्स जो है वो खादिम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करार पाए, और ये कहें कि ये शख्स जो है हर शख्स, यानी ऐसा नहीं है कि ये अमर कुल्ली तौर पे इख्तियारी हो। सना बतूल साहिबा नेक्स्ट हमारी कॉलर है हैदराबाद से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है। सलाम अर्ज़ कीजिए अपने मौला की खिदमत में, और अगर कोई दुआ भी करना चाहें बिस्मिल्लाह फरमाएं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम फातिमा ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला असहाब हुसैन आले मोहम्मद पर वक्त के इमाम पर लाखों पर रोज़ वक्त पर सलाम। ए मेरे आका, मेरे मौला, ए मेरे सैयद सरदार, मेरा सलाम अपनी बारगाह में कबूल कर। ए मेरे मौला, ए मेरे आका, आपको वास्ते फातिमा ज़हरा का मेरे मौला, आपको वास्ते भी ज़ैनब कुबरा का भी सकीना का मेरे मौला। ए मेरे आका, हम सबको अपने ज़मान में रख मौला। ए मेरे आका, हम सबको बीवी करने जो निशान कदम सबकी पर्दे की का दे, हम सबको कोई गम न देखा सवाई गम मेरे बेद के मौला, मेरे मुश्ताक शरीम कर बांसू दूर रख मौला। हम सबको अपने दर की ज़ारत नसीब कर, सबकी आके सब अपने दर पे खत्म कर मौला। ए मेरे आका, मेरे अभी को सेहत वाली जिंदगी दे, मेरे बहन भाई को सबको अपने ज़बान में सबको सेहत वाली जिंदगी दे, सबको नमाज और कुरान पढ़ने की तौफीक दे मौला, सबको छोटी छोटी बातें कबूल कर, सबके रोज़ों को कबूल कर मौला। ए मेरे आका, हम सबकी मुश्किल परेशानी को दूर फरमा, हमारी गम न दिखा सवाई मेरे बेद के सबको दर से इंतजार नसीब कर, सारे मुर्मिन की वफात में हमारा की फरमाए, जन बकी को ज़ैनब की रोज़ी का वादा नसीब कर मौला, सारे मुल्कों के सर पर मुसलमानों की इताअत फरमा, खुद ईरान की हिफाजत फरमा दे मेरे मौला। है मेरे आका, तो हर चीज से वाकिफ फरमा, तो हर दुआ कबूल करता है मेरे मौला। हम सबके दिलों को सुकून दे दे, जिस आज़माइश में गिरफ्तार मौला, उस आज़माइश में मुझे कामयाबी अता फरमा दे। ए मेरे आका, है मेरे मौला, हमारी सबसे बड़ी दुआ हमारे इमाम के ज़हूर में ताज़ीर फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा अजल बली करता है जो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, इख्तिमा से दुआ बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह, और जो भी आपकी शरई हाजात है मौला बारगाह सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम में इंशाअल्लाह कबूल व मकबूल हो, और करबला आने की तौफीक नसीब हो आपको इंशाअल्लाह। और आपसे गुजारिश ये है सना कि आपके पास हमारा नंबर है और आप माशाअल्लाह ताउन फरमाते रहते हैं। आपसे गुजारिश है कि मज़ीद भी जितना हो सके अपने अजीज़ अकारिब रिश्तेदारों के साथ नंबर को शेयर कीजिए, ताकि इंशाअल्लाह मोमिनीन की तादाद ज़्यादा हो सके। शुक्रिया आपका, सलामत रहें जी। माशाअल्लाह, बहुत बेहतर। और देखें यानी इंसान कोशिश करता है हर चीज़ के लिए, और हमारी भी यही कोशिश है इस प्रोग्राम के हवाले से कि ये मज़ीद जो है वो परवान चढ़ सके, मज़ीद कामयाब हो सके, और मज़ीद जो है मोमिनीन के तवज्जुहात का मरकज़ बन सके। देखें इंसान अपनी कोशिश करता है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोशिश कामयाब भी हो जाए, और ऐसा भी नहीं है कि हर काम नामुमकिन हो। काम अक्सर जो है वलाओ कई नादिर ऐसे काम होंगे जो नामुमकिन होंगे, वगरना अक्सर काम जो है वो मुमकिन ही होते हैं। अलबत्ता मुश्किलात उसमें होते हैं, उसमें चैलेंजेस होते हैं, उसमें हमने तो ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो नहायत ही कमज़ोर होते हैं और एकदम से उस मकाम तक पहुँच जाते हैं। मुदस्सिर असगर साहब खुशाब से हमारे नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، اس وقت آپ کی آواز خوشاب سے کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت آپ چونکہ آواز آپ کی کربلا معلیٰ میں ہے، سلام عرض کریں مولا کی خدمت میں، اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے بسم اللہ فرمائیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس۔ یا مولا حسین، میں ایک بے بس اور گناہ گار بندہ آپ کے در پر سر جھکا کھڑا ہوں، میری آواز کمزور ہے، میری ہمت ٹوٹ چکی ہے، میرے دل پر غموں کا بوجھ ہے۔ یا میرے مولا، اگر آپ سہارا نہ دیں تو میرا کوئی سہارا نہیں، آپ رحم نہ کریں تو میرا کوئی آسرا نہیں۔ اللہ، میں نے دنیا کے در کھٹکھٹایا مگر سکون صرف آپ کے نام میں پایا۔ یا شہید کربلا، اپنے غم کے صدقے میں میری مصیبت دور کر دے، اپنے کرم کے سائے میں مجھے چھپا لیں، میں تھک چکا ہوں مولا، مجھے اپنے در کی پناہ دے دیں، میری فریاد کو جلد قبول فرما لیں، اس ٹوٹے دل کو خالی نہ لٹانا مولا، اپنے کرم سے میری دنیا بدل دینا۔ ایک فارسی میں شعر ہے کہ بوئے بہشت واجد از کربلا، یہ تو ہزار سب جان گرامی فدائے تو حسین۔ میرے مولا حسین، تیرے پر بلا سے جنت کی خوشبو آتی ہے، کئی ہزار جانیں قربان ہوا پر ہے میرا مولا حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ غالباً ہمارے اسپانسر بھی ہے، اور اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے مشکلات ہیں مولا حل فرمائے، اور آپ کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سے سرگزارش یہ ہے کہ ہمارا نمبر آپ کے پاس محفوظ ہے، اور ہمارے دیگر نمبر بھی ہے 2 جو انشاءاللہ آپ کو سینڈ کیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مزید اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور جہاں بھی مومنین آپ کے جاننے والے ہیں وہاں تک اس کو پہنچا دیجیے گا گروپس وغیرہ میں، تاکہ انشاءاللہ العزیز زیادہ سے زیادہ مومنین آپ جیسے معزز شخصیات یہاں پر تشریف لا سکے۔ سلامت رہیں آپ۔ جی ضرور، آپ کا انشاءاللہ شکریہ آپ کا، سلامت رہیں، مولا حسین تک پہنچاتے ہیں۔ ضرور سلامت رہیں آپ، شکر گزار ہے۔ جی ماشاءاللہ، مدثر اصغر صاحب، اللہ ان کی تمام مشکلات کو حل فرمائے، اور یقیناً مشکلات ہم سب کے ہیں، اور دنیا میں اگر مشکلات نہ ہو تو تعجب ہو جائے گا کہ کیوں ایسا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ اولاً تو خود دنیا اس پسترین مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر تکلیف، مشکلات، بلائیں اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان اگر دنیا کی بلاؤں سے جان بھی چھڑائے تو اس کو جو ہے کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک روایت ہے، البتہ اس کی میں مضمون آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کہ اس روایت میں اصل میں اس صبر و تحمل کا درس دیا جا رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جس بلا میں گرفتار ہے نا، اس کے اوپر صبر اور شکر کر لے، چونکہ دنیا کا اصول یہ ہے، فطرت کا قانون یہ ہے کہ اگر ایک بلا آپ سے ٹل جاتی ہے نا تو اس سے بڑی بلا سے آپ کی جو ہے وہ پالا پڑ جائے گا، یعنی اس سے ایک چیز سے جب آپ نکلتے ہیں نا پھر اس سے بڑھ کر ایک چیز میں آپ پھنس جاؤ گے۔ یہ دنیا کا قانون کے بارے میں گویا کہ یہ، اور یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں، مثلا بعض خواتین جو اپنے شوہر کے بد اخلاقی کا گلہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ بد اخلاق ہے، بد مزاج ہے، بد تربیت ہے، مثلا صحیح طریقے سے اس کے جب بھی گھر میں آتا ہے بد اخلاقی کرتا ہے، تو ایسے خواتین کے لیے اگر آپ سے کوئی اس قسم کا مشورہ طلب کرے تو اس کو صبر کی تلقین دیں۔ اچھا، اولاً تو یہ ہے کہ اس کی جو شوہر کی بد اخلاقی، یا بالعکس بس اوقات خواتین بڑی بد مزاج قسم کی ہوتی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اولاً تو انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس دنیا میں بھی اس کو صلہ دیا جاتا ہے اور اس کی گناہیں بھی بخش دی جاتی ہے، اور ثانیاً یہ ہے کہ جس آزمائش میں یہ خاتون یا یہ مرد گرفتار ہے اپنے ہمسر کے، جو اس کا شوہر ہے یا کسی کی بیوی ہے، اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے، یہ اللہ اس پہ، یہ شخص جو ہے نا اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور اگر اس سے جان چھوٹ جائے گی نا تو وہ روایت کے مضمون کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی اور ایسی چیز آ جائے گی جس سے پھر انسان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی زہیب جعفر صاحب نیکسٹ ہمارے کالر ہے کراچی سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
सलाम अलैकुम। जी माशाल्लाह ज़ोहैब साहब, आपकी आवाज़ कराची से करबला मोहल्ला तक पहुंच रही है और बड़ी सादत का मौका है। मैं समझता हूं कि सबसे पहले आप सलाम करें अपने मौला की खिदमत में, अगर कोई दुआ भी करना चाहे, फिर मैं आपकी खिदमत में एक अर्ज़ पेश करता हूं। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। माशाल्लाह, कोई दुआ भी करना चाहे, चूंकि कबूलियत के लम्हात है, दुआएं कबूल होती है। बिस्मिल्लाह। दुआ ये है कि बस जो है मौला मेरी जायज़ ख्वाहिशात पूरा कर, इलाही आमीन, इलाही आमीन, सबकी परेशानियों को दूर कर, इलाही आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे और आपकी तमाम मुश्किलात को अल्लाह दूर फरमाए। सर, इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए नज़र करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के साथ एक मुआविन के हैसियत से इरादा करते हैं, जितना कर सकते हैं, जितनी तौफीक है और जितनी इंसान की वुसअत है। तो इंशाल्लाह आप भी इस मुहिम में शरीक होना चाहेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अच्छा, आपसे माशाल्लाह आप जो है जो नज़र का इरादा आपने कर लिया है दिल ही दिल में, किसी एक इमाम का नाम ले लीजिए 12 इमामों में से, या शुहदाए करबला में किसी एक शहीद का नाम ले लीजिए, उसके साथ ख़ास कीजिए ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ निस्बत हो जाए और आपकी दुआ कबूल हो सके। किसका नाम लेना चाहेंगे आप? जैसे मौला हुसैन का नाम। माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माशाल्लाह ज़ोहैब साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको अल्लाह ने तौफीक दी, इरादा भी कर लिया। दुआ गो है कि इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए, करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए, आपके रिज़्क़ और ईमान में बरकत अता फरमाए। और आपसे आखिरी गुजारिश ये है कि हमारा नंबर आपके मोबाइल में महफूज है और हमारे दीगर भी 2 नंबर है जो इंशाअल्लाह आपको सेंड किए जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि अपने अजीज़ अकारिब, दोस्त, रिश्तेदार और जानने वाले लोगों के साथ इन नंबरों को शेयर कीजिए, या अगर कोई ग्रुप वगैरह है, ताकि इंशाल्लाह आप जैसे मुअज़्ज़ज़ लोग इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, सलाम अर्ज़ करें, उसमें यकीनन आप भी सवाब के हकदार होंगे इंशाल्लाह। सलामत रहें आप। खुदा हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह। माशाल्लाह मोमिनीन किराम, इस वक्त कॉल का सिलसिला जारी है और मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि देखें, दुनिया में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जो अहले ईमान तबका होता है वो सीखता रहता है। जो मुनाफिकीन होते हैं या दीगर लोग होते हैं वो अक्सर फंस जाते हैं। जैसे बंदा इंसान दलदल में नहीं फंस जाता, इस तरह फंस जाते हैं, वो उसी में मर जाता है। वो बर्दाश्त कर भी नहीं सकता, तकलीफ़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मर जाएगा उसी तकालीफ में। वो उसके अंदर वो उतना हौसला नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे मुश्किलात दरपेश आते हैं। तो मैं उसी रिवायत का हवाला दे रहा था कि अगर इंसान किसी मुश्किल में फंसा है, उस पर सब्र करें। और चूँकि रिवायात में यह है कि अगर वो मुसीबत टल जाए, जैसे ख़वातीन है मसलन तलाक ले लेती है फ़ौरन शौहर से, उसकी बदअखलाक़ी की वजह से, ये जब चली जाती है उससे बढ़कर मुसीबत में फंस जाती है। वहाँ पर उसको 100 चैलेंजेस का सामना होता है। यहाँ पर एक चैलेंज, वहाँ पर 100। वहाँ पर ज़ाहिर है, मैं मिसाल के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ, जो घरों के हालात हैं, और वहाँ पर ज़ाहिर है उसके मज़ीद जो उसके घर वाले हैं, उसके ताने और उसकी जो बातें हैं, मज़ीद फंस जाती है बेचारी। लोगों की जो है वो बातें, 100 चीज़ें होती है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि उस रिवायत में इस चीज़ की तरफ इशारा, या इसके हट कर मैं बात करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एक इंसान है, वो किसी एक और मुश्किल में फंसा है, उसको कुछ तकलीफ़ है, उसको बीमारी है, उसको दवाई से कंट्रोल कर रहा है, तो उसके उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। सैयदा सीमा हैदर साहिबा कराची से नेक्स्ट कॉलर है हमारी। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह सिस्टर, आपको सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला तक पहुंच रही है। मैं समझता हूं कि सबसे पहले आप मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए और दुआ कीजिए। और जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह,
السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و سید الوسیم، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس و ابن امیر المومنین و سید الوسیم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے پاک پروردگار عالم کی شکر گزار ہوں کہ آج مجھے پھر اتنا زیادہ نصیب ہوا اور میرے امام تک میری زیارت پہنچی ہو کہ میں دعا گہوں کربلا ٹی وی کال والوں کے لیے، پوری ٹیم عمران جو بھی ان کاوشوں کی وجہ سے آج ہماری آوازیں ہمارے امام تک پہنچ نہیں ہیں۔ سب شکریہ میرے یاروں، اور میں دعا گہوں اپنے چاروں بچوں کے لیے پروردگار عالم کے نصیب اچھے کر دیں، ان کو کامیابی عطا کر، صحت و سلامتی والی زندگی عطا کر، اور میری بہن تبسم کو زندہ سلامت رکھ یا اللہ، اور ان کے بچوں کو نصیب بلند کر، اور وہاں کے محمد علی محمد کے سب میں جو بھی مومن و مومنات یہ پروگرام لائیو ٹی وی کربلا کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے جس جائز حاجتوں کے لیے میں دعا گہوں، اور پھر دعا گہوں پروردگار عالم ان مومن مومنات نے خصوصی مجھ سے دعا کی لکھا ہے، پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما دیں جو بھی جائز حاجت ہیں، اور میرے والدین کو میرے ہسبینڈ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر، اور آخر میں میری خاص بات ہے چاروں بچوں کو میری شفا کاملہ عطا فرمائے، اور یا اللہ میرے مولا امام زمانے کے ظہور میں تاجیل فرما دے، جلد از جلد، اللہم صلی علی محمد و محمد، اللہم صلی علی محمد و محمد۔ الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور آپ کے بچوں کے لیے خصوصی دعا گو ہے، اللہ کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد کربلا آنے کی دوبارہ اور بار بار زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور آپ کے لیے دعا گو ہے، یقیناً جو بھی آپ کی دعائیں ہیں مولا قبول فرمائے۔ اور آپ سے سسٹر ایک گزارش یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جو ہمارے نمبرز ہیں، اپنے دیگر جو آپ کے رشتہ دار ہیں یا جاننے والے لوگ ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دیجئے تاکہ انشاءاللہ وہ بھی تشریف لا سکیں۔ جی جی سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ آپ کا، سلام علیکم، خدا حافظ، خدا حافظ۔ ماشاءاللہ سیدہ سیما حیدر صاحبہ ہمارے ساتھ کال پہ تھی، اور بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ۔ آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اس پروگرام کو مزید رائج کیجیے، اور یہ آپ ہی رائج کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی چیز جب کامیاب ہوتی ہے عوام کی طاقت سے کامیاب ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان خود بخود ایک چیز کو کامیاب بنا سکے۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے حوالے سے آپ کوشش کریں۔ دو چیزیں ہیں جو سب سے مہم ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ کربلا کے ساتھ ٹچ ہوں گے، اور جو بھی کربلا کے ساتھ جڑیں گے اور جو زیارت سید شہداء کا ایک جملہ کہیں گے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، یہ ایک جملہ یہ زیارت کا، اس میں یقین فرمائیں کہ آپ بھی اس میں شریک ہے اور آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ سید حسنین حیدر نقوی صاحب لاہور سے ہمارے نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کربلا معلیٰ سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ چونکہ اس وقت آپ کی آواز کربلا کی فضاؤں میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجئے، اور اس کے بعد کوئی دعا بھی کرنا چاہے، پھر میں ایک عرض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ فرمائیں۔ السلام علیکم یا عبد اللہ، مولا حسین یہی چاہیے کہ مولا ہمیں بھی بلائیں اپنے گھر، اور ہم سب کو یہاں کا اذن دیں۔ مولا ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے در پہ آئیں اور حاضری دیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کو جلد از جلد حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، اور بار بار اپنے فیملی سمیت کربلا آنے کی توفیق ہو انشاءاللہ۔ جو بھی آپ کی دعائیں ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول اور مستجاب فرمائے۔ میں ایک گزارش آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے معاون کی حیثیت سے ایک نظر کا ارادہ کرتے ہیں، حسب توفیق جتنا کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ بھی اس مہم میں شامل ہونا چاہیں گے؟ انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، آپ نے جو نظر کا ارادہ دل ہی دل میں کر لیا ہے،
जितना भी है, आपसे आप इमामों में से किसी एक इमाम का नाम लीजिए 12 इमामों में से, या शुहदाए करबला में से किसी एक शहीद का नाम ले लीजिए ताकि निस्बत हो जाए और इंशाल्लाह आपकी जो दिल की हवाइज है, दिल के हवाइज वो पूरे हो सके। किसका नाम लेना चाहिए? इमाम ज़माना या साहिब ज़माना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे और आपका शुमार और हमारा शुमार इंशाअल्लाह नासिरान हज़रत साहिब ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ में हो और अल्लाह आपकी नज़र को कबूल फरमाए। आपसे एक गुजारिश आखिरी ये है कि हमारा नंबर आपके पास मौजूद है और हमारे दीगर नंबर भी है, इंशाल्लाह वो भी आपको सेंड कर देंगे। आपने अपने दोस्तों, अजीज़, रिश्तेदार जो भी है उनके साथ शेयर कीजिए जो ग्रुप्स वगैरह है वहाँ पे, ताकि आप जैसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियात इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में मज़ीद भी आ सके और उनका एक सलाम सैयद शुहदा को आप भी उसमें शरीक होंगे सवाब। सलामत रहे आप, शुक्रगुजार है। सलामत, मौला आपको भी सलामत रखे। शुक्रिया जी। सैयद हसनैन हैदर साहब थे लाहौर से, माशाल्लाह। और जी बिल्कुल यही है कि अगर इंसान जो है किसी को अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ जोड़ने की कोशिश करे, वो जब तक ज़िंदा है और जब तक वो उस कार खैर में मसरूफ़ है, सवाब इसको भी मिलता रहेगा जिसने उसको जोड़ा है। यानी इस कदर है कि अगर इंसान राह खुदा में कोशिश करे और राह खुदा में किसी शख्स को इस अहल बना दे, अहल तो खैर खुदा ही बनाएगा इंसान को, लेकिन ज़ाहिर है इसकी उस कार खैर में जो शिरकत हुई है उसमें इसका भी कोई नक्श है, ये उसके नक्श की जो आपको कीमत है ना सवाब की शक्ल में, वो आपको मिलती रहेगी। तो ये मकाम है। और जहाँ तक हम बात कर रहे थे खादिमीन हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, तो खादिमीन हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम आप भी बन सकते हैं। और बहुत सारे मोमिनीन ये कहते हैं काश हम हरम हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के खादिम बने। चूँकि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो वहाँ पर सफाई करने वाला है या दीगर खिदमात अंजाम दे रहा है वही सिर्फ खादिम सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम है। बेशक के है वो, और इसमें कोई शक भी नहीं है। अजीम सादत है अगर कोई इस तरीके की सादत उसको हासिल हो जाए। लेकिन मेरी नज़र में बल्कि असल हकीकत भी यही है कि जो शख्स इमाम बारगाह में सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त में, इमाम के फ़िक्र में या इस सिस्टम में अगर कोई शख्स अपना किरदार अदा कर रहा है, वो भी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का खादिम है, वला वो किस शहर में भी बैठा हो। शायद वो एक दफ़ा भी उसको ये किस्मत उसकी न हुई हो कि वो करबला आ सके, लेकिन उसके बावजूद भी वो खादिमीन सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में शामिल है। और यकीनन अगर कोई भी है, यानी मैं इस उन्वान से अर्ज़ कर रहा हूँ, और अगर इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर कोई शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी जो यहाँ से नशरियात पेश कर रहा है, अगर इसमें भी कोई सहीम हो जाए तो यकीनन वो भी खादिमीन सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम में शामिल है। और इसके लिए ज़्यादा ज़हमत की ज़रूरत भी नहीं है, इखलास होना चाहिए, इखलास। और दूसरी जो बहुत मुहिम चीज़ है वो परहेज़गारी है। देखें, परहेज़गारी को मेरे भाइयों और बहनों, इसको आपने नहीं छोड़ना है। परहेज़गारी अवलीन शर्त है, पाकीज़गी अवलीन शर्त है। ऐसे ना बने ऐसे जैसे مثلا आपने शुरू तो कर लिए काम, लेकिन साथ में गुनाहों से भी अपने आप को आलूद कर रहे हो। खुदा की कसम आपके तौफीकात सल्ब हो जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सारे मोमिनीन हमारे जिस तरीके से उन्होंने मोमिनीन और मुकस्सरीन की जो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाई हुई है अपने आप में, कोई हदीस से ताल्लुक़ नहीं है इसका, ना कोई रिवायत है। जी मेरा दिल ये कहता है। आपके दिल से थोड़ी ना इस्लाम बन जाएंगे। इस्लाम के कुछ कवानीन है, कुछ उसूल है, कुछ ज़वाबित है। तो मेरे अजीज़ों, असल हकीकत यह है कि इंसान को सबसे पहले पाकीज़गी को इख्तियार करना होगा, चूँकि अकल का भी यही तकाज़ा है। अगर कोई साफ़ सुथरी चीज़ है उसमें गंदगी तो नहीं डाली जा सकती ना। आपकी खालिस नीयत है, आप सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के खादिम हैं,
آپ سید شہداء علیہ السلام کے خدمتگار ہے، آپ امام بارگاہ ہے، آپ کی یا مجالس کو برگزار کر رہے ہیں یا مواقب لگا رہے ہیں یا نظر و نیاز کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی ایک صاف طبیعت ہے نا، اس صاف صفائی اور طہارت کے ساتھ آپ کی نیت جو ہے وہ صاف ہے، اس میں کیسے یہ گندگی کو شامل کیا جا سکتا ہے؟ تو اصل چیز وہ یہ ہے کہ بعض جو فطری اور غیر فطری چیزیں ہیں نا، اس کو آپس میں مخلوط کرنے کی کوشش نہ کیا کریں، یہ فطرت کے قانون کے خلاف ہے۔ آپ نے رکھنا اس طریقے سے ہے کہ سید شہداء علیہ السلام کے راہ میں اگر آپ حقیقتاً آپ کوشش کر رہے ہیں، اور میں راہ سید شہداء علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایک روایت ہے جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے 11 محرم کو امام سجاد علیہ السلام کو، حقیقتاً روایت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ سے تھی، لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ روایت فرماتی ہیں حضرت امام سجاد علیہ السلام کے لیے، البتہ اسباب تذکر یہ کہہ سکتے ہیں یا اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اور آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ امام سجاد علیہ السلام وقت کے امام تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ ہمارے جد کے کلمات ہیں اور اسی طریقے سے ہیں۔ لیکن بہرحال روایت جو ہے کافی جو ہے وہ کافی طولانی روایت ہے، لیکن اس میں سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو خط ہے سید شہداء علیہ السلام کا، اس روایت میں اشارہ ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا وَيَنْسِبُونَ بِهَذَا الطَّفْ عَلَمًا، یعنی طف سے مراد جو ہے وہ کربلا ہے، جس کو واقعہ طف کہتے ہیں نا، واقعہ طف کہتے ہیں اس کو، کربلا کا پرانا نام طف ہے۔ تو سید زینب سلام اللہ علیہ روایت کو نقل کرتی ہے کہ بعد شہادت سید شہداء علیہ السلام اس طف پر بلند کیا جائے گا، یعنی اس خط کو، جو میں یہ خط عرض کر رہا ہوں نا، اس کو بلند کر دیا جائے گا، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے اس شعار کو، اس آواز کو بلند کر دیا جائے گا۔ اور یہاں پر دیکھیں، یہاں پر مراد یہ ہے کہ یہاں سے، یعنی یہ واقعہ طف کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ہر شخص جو ہے اس میں ہر شخص اس میں حصہ لے سکتا ہے، ہر شخص لے سکتا ہے، اور جو اس خط میں شامل ہوں گے، فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے وہ حقیقی وہی لوگ ہیں کہ جسے، یعنی یہ خادمین سید شہداء علیہ السلام جو اس خط میں مخلص ہے اور یہ سلسلے کو وہ اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں۔ کچھ اور گروہ کی طرف بھی اس حدیث میں اشارہ ہے روایت میں کہ یہ لوگ جو ہے وہ نیچے لانے کی کوشش کریں گے، یعنی کوشش کریں گے کہ اس کو مخبوط کر سکے، اس کو گرا سکے، وہ لوگ بھی ہوں گے۔ تو اس کو جو ہے وہ ائمہ کفر سے تشبیہ دی ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ اصل اہل ایمان ہے، یہ لوگ کوشش کرنے والے لوگ ہیں ہر جگہ پر، پوری دنیا میں یہ کوشش کرنے والے لوگ ہیں، اور چاہے وہ جہاں پر بھی ہے یہ سلسلے اور اس مشن کو جاری رکھیں گے۔ تو اگر ایک انسان اپنے منطقے میں یا اپنے علاقے میں بھی اس طریقے سے ہے، تو وہ بھی بے شک، اس میں شک نہیں ہے کہ وہ بھی سید شہداء علیہ السلام کا خدمتگار ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز جو ہم بارہا عرض کرتے ہیں، اور ابتدائی شب میں، ابتدائی ماہ رمضان عظیم کی راتوں میں جو ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، پہلے میں اس کو تکرار تو نہیں کرنا چاہتا، کہ اس میں فرمایا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ سے حدیث تھی کہ ہم جو ہے وہ رمضان کو ہم نے رکھا تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ اخلاص کا اندازہ لگا سکے۔ خلوص بہت ضروری چیز ہے۔ اچھا، خلوص اس قدر ہے، جیسے یہ میں نے عرض کیا کہ جو راہ سید شہداء علیہ السلام ہے، خلوص کے ساتھ انسان اس میں لگا رہے، اخلاص کے ساتھ، اس قدر ضروری ہے۔ اور یہ اخلاص یقین جانیے انسان کو ہدایت کر دیتا ہے، اور اگر یہ اخلاص کسی کافر میں بھی ہو نا، اس کی بھی اللہ اس کے لیے کوئی ایسا راہ ہموار کر دے گا کہ اس کی یہ شخص جو ہے اس کی ہدایت ہو جائے گی۔ جو نصرانی کا واقعہ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ جب سید شہداء علیہ السلام کو شہید کر رہے تھے،
تو یہ ظالمین وہاں پہ سارے موجود تھے میدان کربلا میں. انہوں نے آپس میں فیصلہ کر لیا کہ اگر ہم میں سے کوئی جو بظاہر یہ سارے مسلمان تھے، عمر بن سعد بھی مسلمان تھا لعنت اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ جو ہے شمر، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کنفوز وغیرہ جتنے بھی تھے وہاں پر، بہرحال جو بھی وہاں پر تھے وہ سارے کے سارے ظاہر ہے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ رہے تھے نا. وزیر علی مشہدی صاحب نیکسٹ ہمارے کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مولا علی علیہ السلام مدد. آپ کی آواز اس وقت کربلا مولا میں گونج رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے مولا کو سلام کیجئے، اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے بسم اللہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا صحاب الحسین، السلام علیکم یا فضل اللہ حسین لمدار، السلام علیکم جناب علی اکبر، جناب علی اصغر الاسلام، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا میرے مولا آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. کریم کربلا، نواب کربلا، سردار کربلا، یا آقا مولا حسین علیہ السلام. مولا آج کے اس عنوان سے آپ کی بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں کہ 27 کا روزہ ہے، اور یقیناً یہ طاق راتیں ہیں بنسبت اہل سنت دوستان کے حوالے سے. تو مولا آج کی رات کے لیے تمام ان امت مسلمان، تمام مومن مومنات کے لیے دعا گو ہوں. مولا تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیے. مولا بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائیے. مولا بے گھروں کو اپنی چھت عطا فرمائیے. مولا اس وقت ہمارے ساتھ ایک اہل سنت کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وحید علی مہیسر صاحب، ان کا بھی سلام آپ کی بارگاہ میں مولا حسین علیہ السلام پیش کرتے ہیں، اور ان کے بچوں کے لیے، ان کے خانوادہ کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ مولا انہیں کوئی غم نہ دے. غم امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں میرے مولا میرے آقا آپ کی نصرت کا صدقہ، آپ کی مدد کا صدقہ، اسی کاموں میں دن رات گزرتے ہیں. آنکھ کھلتی ہے علی علی کرتے کرتے، سوتے ہیں حسین حسین کرتے کرتے. یہ کریم کربلا آپ کا لطف و کرم ہے کہ ہمیں ان کاموں میں مصروف رکھا ہے جس میں آپ اور آپ کے جد اور آپ کی حال راضی. مولا ہمیں شیاطینی کام سے، شیاطینی مخلوق سے اور شیاطینی معاملات سے آپ نے دور رکھا ہے، یہ آپ کا احسان ہے. مولا بس میری یہی ہے کہ التجا ہوگی کہ جتنے بھی دوستان کو امام حسین عالمی ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے میں رجوع کرواتا جا رہا ہوں، مولا تمام دوستان کی، خواہ وہ ہندو ہوں، خواہ وہ سنی ہوں، خواہ وہ دیوبند ہوں، خواہ وہ بریلوی ہوں، لیکن مولا ان کی جو شرعی حاجتیں ہیں وہ بروے روزگار لائیں. مولا ان کی مدد فرمائیے. مولا ہر جہان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائیے. مولا ہر جہان کو اپنے زمان میں رکھیے. ہماری ایک ہی دعا ہے کہ لا وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے. مولا ہمارے حقیقی وارث آقا مولا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور فرمائیے، اور مولا کے ادنا سپاہ میں شمول فرمائیے. اور امام حسین عالمی ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر یہ جتنے بھی دوستان کام کر رہے ہیں، بالخصوص سید خازن حسین شاہ اور دوسرے شاہ صاحب، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیے. مولا کوئی غم نہ دیجیے، غم میں شبیر کی سوا آباد و شاد رہیں. مولا ملک پاکستان کے لیے دعا گو ہوں، اپنے شہر ڈسٹرکٹ اقباباد کے لیے دعا گو، یہاں کے ہندوؤں کے لیے، یہاں کے مسلم کے لیے، یہاں سکھوں کے لیے، یہاں پر جتنی بھی آبادی رہتی تمام آبادی کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مولا انہیں ہمیشہ آباد و شاد فرمائے. السلام یا علی مدد. بڑی نواز مولا علی علیہ السلام مدد. مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کے خلوص کو قبول و مقبول فرمائے. اور ماشاءاللہ آپ معاون ہیں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے، اور آپ سے مزید بھی گزارش ہے کہ جو نمبرز آپ کے پاس ہمارے موجود ہیں آپ اس کو شیئر کیجئے گا اپنے دوست احباب کے ساتھ انشاءاللہ العزیز، تاکہ یہ کاروان جو ہے اسی طریقے سے مزید اس سے بہتر طریقے سے آگے چلتا رہے. سلامت رہیں آپ. شکریہ آپ کا، شکریہ. سلامت رہیں جی. بہت بہتر. اور میں دیکھیں خلوص کی بات ہوتی ہے، انسان اگر کوشش کر رہا ہے اور اپنے اعتبار سے اپنے دوستان ہے، یار ہے، احباب ہے، اور اپنے جتنی بھی انسان جہاں تک کر سکتے ہیں. اور آج کے اس دور میں یقیناً مومنین جو ایک دوسرے کو بظاہر جانتے نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، تو اس میں بھی انسان یہ پیغام پہنچا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف انہی تک پیغام پہنچائے جس کو ہم جانتے ہیں. نہیں، اگر نہیں بھی جانتے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر یہ بات مؤثر ثابت ہو سکتی ہے، تو وہاں تک بھی پہنچانا چاہیے، اور یہ اخلاص کے اوپر ہے. تو میں اس پر وہ بات کر رہا تھا کہ میدان جب انسان کے اندر خلوص ہو اور واقعاً ایک سچا انسان ہے، واقعاً صحیح خط پہ چل رہا ہے، ولو اگر مسلم نہیں بھی ہے، اللہ اس کو
اسلام میں داخل کر دیتا ہے اس کی ہدایت ہو جاتی ہے. جو نصرانی کا واقعہ ہے، اور وہاں پر جب ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم سید شہداء علیہ السلام کو قتل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کل کو کہیں گے مسلمانوں نے قتل کر دیا، تو ہم لہٰذا کوشش کرتے ہیں کسی ایک غیر مسلم کو لے آتے ہیں. تو یہ نصرانی کو لے آئے جو اپنے دین میں پکا تھا اور سچا انسان تھا، تو لے آئے تو وہاں پر اس کی ہدایت ہو گئی، خدا نے اس کی ہدایت کر دی. نجم الحسن بھٹی صاحب ملتان سے ہمارے نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال آ رہی ہے سب کی. ماشاء اللہ. السلام. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بھٹی صاحب آپ جو ہے طبیعت آپ کی کچھ بہتر ہوئی؟ جی ہاں بھائی جان بہتر ہوئی ہے. الحمدللہ. دکھا رہا ہوں ٹیسٹ وغیرہ کروائے، یورین وغیرہ، وہ یورک ایسڈ، بہت سارے ٹیسٹ ہیں وہ سب کروائے ہیں. صحیح جانا ہے پروفیسر صاحب کے پاس، ڈاکٹر. صحیح صحیح صحیح. انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے اور آپ کو اللہ باعزت زندگی نصیب فرمائے انشاءاللہ. سلامت رہیں آپ. اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے. سلام عرض کیجئے مولا کی خدمت میں اور دعا بھی کیجئے. بسم اللہ. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سلام بین الحرمین میں سلام، امام حسین السلام، امام حضرت عباس السلام، جو بھی شہداء کربلا ان سب کو میرے گھر والوں کی طرف سے سلام. بحق کے محمد وعلی محمد کے صدقے مولا ہمیں چھپائے، مجھے اور میری بہن ان کو بھی چھپائے کاملہ عطا فرمائے. میرے گھر میں جو بھی میرے بھائی، میرے بھتیجے، بھانجے، سب کو مولا مشکل کچھ آپ نے نظر خیریت سے دیکھیں. ان سب کو اپنے اپنے جو بھی بے روزگار ان کو روزگار عطا فرمائے، جو کام پہ لگے ہوئے مولا ان کو اور کام عطا فرمائے. بحق کے محمد علی محمد کے صدقے مولا ہم آپ کے سوا کہیں اور کہاں جا سکتے ہیں، کہیں بھی نہیں. اور میری تو یہی دعا ہے کہ نجف اشرف سے لے کر مدینہ جنت البقیع میں جو بھی ہیں شہداء بی بی وغیرہ، بی بی اور زینب، بی بی زینب عالیہ تمشق، سب کو میرے گھر والوں کی طرف سے سلام. اور بحق کے محمد علی محمد کے صدقے مولا مجھے صفا کاملہ عطا فرمائے تاکہ میں احتیاط اور ہو کر آپ کی زیارت کر سکوں، آ سکوں کربلا نجف اشرف ایک دفعہ زندگی میں. یہ خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے آپ بلا لے تاکہ ہم آپ کی زیارت کر سکیں، جنت دیکھ سکیں. باقی جو فیصلہ ہوگا وہ تو بعد میں، لیکن بس یہی ہے انشاءاللہ. نہیں بالکل. زندگی جو ہے وہ امید کے ساتھ ہے. اللہ آپ کو نا امید نہ فرمائے اور انشاءاللہ جو بھی آپ کی دعائیں ہیں مولا قبول فرمائے اور اللہ آپ کی ایمان اور آپ کی جو بھی آپ کو چاہیے اللہ آپ کو نصیب فرمائے. سلامت رہیں آپ، مولا کے امان میں رہے اور اپنا خیال رکھا کریں. سلامت رہیے اور جہاں تک ہو سکے ہمارے نمبر کو بھی شیئر کرتے رہیے گے. مولا سلامت رکھے آپ کو. جی جی شکریہ. انشاءاللہ ضرور جی ضرور. بڑی مہربانی آپ کی. خدا حافظ. خدا حافظ. سلامت رہیں آپ. جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور یقیناً انسان کے اوپر جہاں تک مشکلات اور بلایات آ جاتے ہیں اور انسان پریشان ہو جاتا ہے، صبر کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس دنیا میں صبر سے بڑھ کر اور کوئی دوائی نہیں ہے کہ جس سے انسان کی حالت بہتر ہو سکتی ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور واقعاً بڑی تلقین ہے. یعنی صبر ایک ایسی دوائی ہے نا کہ اگر یہ صبر ہر بندہ کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے کہ اللہ صبر دے، اللہ صبر دے، لیکن صبر ہر بندے کا کام نہیں ہے. یہ اللہ کے شاکر بندوں کا کام ہے. اگر اللہ کا کوئی شاکر بندہ ہے تو وہ یہ صبر کر سکتا ہے. اور اگر صبر کی دوائی یہ وہ دوائی ہے جو انسان کو واقعاً زندگی میں کامیابی بھی دلا سکتا ہے. یعنی انسان کامیاب ہو جائے گا اور دوسری طرف سے نا امیدی سے بھی بچتا رہے گا. اگر انسان کو واقعاً اللہ نے عطائی کر دی اور کسی کو صبر کی جو دوائی ہے اگر کسی کو دے دی اور واقعاً اس کے اوپر مؤثر آئی تو یہ چیزیں ہیں. اور انشاءاللہ العزیز اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے اور صبر کی تلقین عطا فرمائے. ویسے زبانی حد تک صبر نہیں بلکہ ہمارے وجود میں
وہ صبر جو ہے وہ آ جائے انشاءاللہ العزیز. تو مشکلات بہرحال ہے، اور مشکلات کے لیے یقیناً اگر ایسے مشکلات ہیں، دعاؤں کا سلسلہ، توسلات کا سلسلہ، یہ تو کسی انداز سے بھی آپ کو یہ تو نہیں چھوڑنا چاہیے. انسان کو ہمیشہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے. یاسمین کوثر صاحبہ ٹیکسس سے ہماری نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ، اس وقت آپ کی آواز امریکہ سے کربلا مولا تک پہنچ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے آپ سلام کریں مولا کی خدمت میں، اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہیں بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم باب الحوائج. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا امام زین العابدین فخر ساجدین. السلام علیکم یا حبیبی زینب سلام اللہ علیہا. السلام علیکم بی بی کلثوم سلام اللہ علیہا. السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب عصر و زمان. اللہم عجل ولی کا فرج، اللہم عجل ولی کا فرج. الہی باغ کے مولا حسین، الہی باغ کے باب الحوائج، امام زمانہ ظہور پہ تجلیل فرما. الہی باغ کے مولا حسین، الہی باغ کے باب الحوائج، الہی باغ کے شہزادہ علی اکبر، شہزادہ قاسم اور محمد. ہمیں بلائے مولا، جلد سے جلد بلائے، ہم اپنا درد دکھائے مولا، ہمیں زوار بنائے مولا، ہمارے سارے جائز حاجات قبول فرمائے مولا، ہم سب کی بیماریاں دور فرمائے مولا، ہم سب کی جو جائز حاجات ہے، سب جو مشکلات ہے سب آسان کیجیے مولا. الہی باغ کے مولا حسین ہمارے مرحومین کی مغفرت نصیب فرما. الہی باغ کے مولا حسین چینل والوں کو ترقی دے، کامیابی دے، اور میرے بھائیوں کو لمبی عمر عطا فرما، الہی آمین. صحت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ. الہی باغ کے مولا حسین، الہی باغ کے باب الحوائج، بار بار کہتی ہوں جہاں جہاں بیمار ہے سب کو شفا فرما. میرے بیٹے کو شفا فرما اور اس کی بیماری دور فرما. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر بھائی صاحب. اللہ آپ کو سلامت رہیں آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. بحق امام حسین علیہ السلام مولا آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول فرمائے. اور آپ سے گزارش ہے، چونکہ آپ ماشاءاللہ ہماری آلریڈی اسپانسر بھی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ نمبرز کو مزید مومنین اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ انشاءاللہ مزید مومنین بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکے. شکریہ آپ کا، انشاءاللہ سلامت رہیں. شکریہ آپ کا. تو اس عنوان سے ہم عرض کر رہے تھے کہ اگر انسان کے اندر خلوص کا جذبہ ہے تو انسان یقیناً کامیاب ہو سکتا ہے. ہمارا جو پروگرام کا پہلا حصہ ہے وہ تقریباً اختتام تک پہنچ چکا ہے، اور ہمارے ہر دل عزیز محترم المقام عالی جناب علامہ سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ حصے میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. اور انشاءاللہ العزیز آپ نے جانا نہیں ہے بلکہ بھرپور جو ہے وہ استقبال کریں، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کو مزید 4 چاند لگائیے. اور یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، انشاءاللہ مولانا کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है उस ज़ात के लिए जो लाइक हम्द है, दरूद है ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिह जो कि लाइक दरूद हैं, और उनकी आले पाक पर जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के पहुँचाने का ज़रिया बनाया। लानत है उनके कातिलों पर, उनका हक़ गस्ब करने वालों पर, और उनके मकाम को अपना मकाम समझने वालों पर, और उनकी ज़ात से मुकाबला करने वालों पर। जिस तरीके से आप जानते ही हैं, रमज़ान अज़ीम ज़्यादा से ज़्यादा 4 रोज़ और कम से कम 3 रोज़ का मेहमान है हमारे दरमियान। 26 रमज़ान अज़ीम 1447 हिजरी कमरी 16 मार्च 2026 ईस्वी। हम अपने प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर के साथ आप सबकी खिदमत में मौजूद हैं, और ये प्रोग्राम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 का प्रोग्राम है। रोज़ाना आप सबकी खिदमत में इराक़ी टाइम के मुताबिक रात में 7:30 से 9:30 के दरमियान लाइव होता है, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात में 9:30 से 11:30 के दौरान लाइव होता है, और इंडियन टाइम के मुताबिक रात में 10 बजे से लेकर 12 बजे के दौरान आपके दरमियान मौला का पैगाम पहुंचाता है। और बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक रात में 10:30 से लेकर 12:30 के दौरान आपकी खिदमत में तवस्सुल के मौक़े मुहैया करता है। और न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक रात में 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के दौरान आप सबको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से रब्त रखने का मौका देता है। और लंदन के टाइम के मुताबिक शाम में 4:30 से 6:30 के दौरान आप सब के लिए तवस्सुल की साअतें होती हैं। तो आप सब ने ये वक्त नोट कर लिया। इस वक्त में, जिस वक्त में हम आपकी खिदमत में लाइव हैं, आप मौला को सलाम भी पेश कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मौला से तवस्सुल कर सकते हैं। नेक्स्ट डे में 3 टाइम्स ये रीप्ले किया जाता है। इस वक्त लाइव हो रहा है प्रोग्राम, ये रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट डे में 3 मरतबा ये लाइव किया जाएगा। लाइव नहीं होगा बल्कि ये नेक्स्ट डे में 3 मरतबा दोबारा इस प्रोग्राम को रिप्ले किया जाएगा, और उस वक्त में आप मौला को सलाम जो भेज सकते हैं, लेकिन कॉल आपकी लाइव प्रोग्राम में नहीं हो सकती। मुझसे पहले मौलाना किबला सैयद खादिम अब्बास साहब आप सबको तवस्सुल के मौक़े मुहैया फरमा रहे थे। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद साहब हैदराबाद से मौजूद, मोहम्मद कामरान साहब हैदराबाद से मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली अलैहिस्सलाम पाक मदद। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। कैसे हैं जनाब, खैराफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं आपकी। करम है मालिक हुसैन मौला मुश्किल कुशा का। मौला आपको सलामत रखें। आपकी कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 करबला मोहल्ला में मिली हुई है। प्रोग्राम का नाम है 14,000 स्पॉन्सर। इसमें मोमिनीन कॉल करते हैं, मौला को सलाम पेश करते हैं, तवस्सुल करते हैं। प्रोग्राम का टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात में 9:30 से 11:30 के दौरान है, और इस दौरान में आप कॉल कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम का दौरानिया 2 घंटे है। इसके 3 नंबर हैं व्हाट्सएप, इन पर आप रोज़ाना कॉल कर सकते हैं, मौला से तवस्सुल कर सकते हैं, अपनी अराइज़ पेश कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और मौला से तवस्सुल करते हैं, और मौला की खिदमत में अपनी हाजात पेश करते हैं, मुश्किलात के हल के लिए, परेशानियों के हल के लिए, अपने माल और रिज़्क़ में इजाफ़ा और बरकत के लिए मौला की बारगाह में इस प्रोग्राम में नज़र करते हैं। क्या आप भी चाहेंगे कि मौला की बारगाह में कोई नज़र करें? जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाहुम्मा ये है कि मैं सल्ली अला मुहम्मद के अंदर जो है वो सलाम पेश कर सकूं। मौला आपको सलामत रखें। ये जो आपने नज़र का ऐलान किया है ना, ये चहारदा मासूमीन और शुहदाए करबला अहले बैत के घराने में से किसी ज़ात अक़दस के नाम कर दें ताकि आपको ज़्यादा अजर हासिल हो सके। सर शुहदाए करबला 14 12 मासूमीन
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मौला आपको सलामत रखें। ये हमारे तीनों नंबर्स इंशाल्लाह आपको सेंड कर दिए जाएंगे। इन पर आप इन तीनों नंबर्स को आप और मोमिनीन को भी शेयर कीजिएगा। कम से कम 14 मोमिनीन को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मौला की बारगाह में अपनी अर्ज़ अक़ीदत पेश कर सके। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में अपनी मुश्किलात के हल के लिए, परेशानियों के इज़ाले के लिए, बाल बच्चों की सेहत आफियत के लिए, शर शैतान व आदा से हिफ्ज़ व अमान के लिए, हुज्जत खुदा की बात और उनके हुक्म पर हमेशा कायम और दायम रहने के लिए, उनके मुंतज़िर और उनके सिपाही बनने के लिए करबला की तरफ रुख कर लें। दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के मौला की बारगाह में ज़ियारत पेश कीजिए, सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मुहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी मैं आपकी मदद कर दूं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका व अला अंसारिकल मुस्तशहदीन मअका जमीआ ला सय्यमा अबुल फज़लिल अब्बास या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या बारिला हमारी मुश्किलात हल फरमा, परेशानियां हल फरमा, हमारे माल और रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा, इल्म और ईमान में तरक्की अता फरमा, दुनिया और आखिरत में शर शैतान और आदा से महफूज फरमा। हम सबको कुर्ब व जवार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नसीब फरमा। जल्द करबलाए मौला आने का शरफ अता फरमा। तमाम मोमिनीन की मुहाफ़िज़त फरमा। दुश्मनाने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को हिदायत अता फरमा। या बारिल्लाह इज़्ज़त अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का सदका हम सब की जो जो मुश्किलात हैं हल फरमा। ये मनाजिर जो टेलीविज़न में दिखाए जा रहे हैं, या बारिल्लाह इन खूबसूरत मनाजिर और इस खूबसूरत ज़री को अपने दिल में बसाने का शरफ अता फरमा। हुज्जत खुदा का ज़हूर अता फरमा। हमारी जो जो दुआएं हैं कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत करने का। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। प्रोग्राम के टाइम को नोट रखिएगा। 14 मोमिनीन में ये व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कीजिएगा और ख़ुद भी कॉल करते रहिएगा। हम मुंतज़िर रहेंगे आपकी कॉल के। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला आपको खुश रखें। बहुत शुक्रिया आपका या अली मदद। मौला की अमान में सलामत रहें। मौला से तवस्सुल हम अपनी नजात के लिए करते हैं, हयात के लिए करते हैं, उखरवी हयात के लिए करते हैं। इस हयात को इज़्ज़त दिलाने के लिए मौला से तवस्सुल करते हैं। देखें जहाँ कहीं भी हो हमारे लिए इंसाफ और अदल, अमन, ईमान, देखें ये सब चीज़ ज़रूरी है। अब हमारे लिए इंसाफ क्यों ज़रूरी है? ताकि हम एक दूसरे के हुकूक को गस्ब ना करें। अदल क्यों ज़रूरी है? ताकि हम किसी भी नाहक को कबूल ना कर लें, किसी नाहक को कबूल ना कर लें और हर चीज़ को जाय मुनासिब पे रखने के कायल हो जाए। इसलिए हमारे लिए अदल ज़रूरी है। अब हमारे लिए अमन क्यों ज़रूरी है? अमन इसलिए ज़रूरी है ताकि जब तक अमन नहीं होता इंसान बेअमनी की कैफियत में इत्मीनान हासिल नहीं कर सकता। इत्मीनान के लिए अमन होना ज़रूरी हुआ करता है। अब वो अमन दरूनी हो, दिल का अमन हो, फ़िक्र का अमन हो और शहरी अमन हो, ये सब चीज़ें ज़रूरी हुआ करती हैं और हम सब के लिए ज़रूरी है। अब देखें ईमान, ईमान मैंने कह दिया, आप लोगों ने सुन लिया। अब ईमान काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जिनके नज़दीक ईमान कोई चीज़ नहीं होती। ईमान हालांकि वो एक अकीदा ज़रूर रखते हैं ना। जी वक़ास साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। अस्सलामु अलैकुम। जी शायद कॉल में कोई प्रॉब्लम हुई, बहरहाल हो जाती है और सिलसिला ऐसा ही है। कुछ मोमिनीन का नेट के लाइट जाने की सूरत में नेट कट जाता है, ठीक है, और कभी कभार मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म होने की सूरत में नेट कट जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान के घर की वाईफाई का नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है और कभी कभार ऐसा होता है जहाँ से वाईफाई आ रही होती है वहाँ पे लाइट चली जाती है, हमारे घर की वाईफाई चल रही है, नेट नहीं है। कभी स्लो भी हो जाता है नेट और कभी कभार मौसमी असरात भी
मुरतब हो जाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है घर के अंदर मौजूद अफराद कोई और चीज़ लगाने के लिए वाईफाई का स्विच निकाल देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, उससे भी नेट कनेक्ट। बहरहाल ये सब चीज़ें वो हैं जो हमारी ज़िंदगी का मामूल है, दोहराने का। बहरहाल ईमान जो है हर किसी को है, किसी न किसी समत में उसके दिली झुकाव को ईमान कहा जाता है। हम ईमान अल्लाह रसूल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर यकीन रखने को ईमान कहते हैं, और ईमान के अंदर हम उसूल दीन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, इनको हम ज़्यादा मलहूज़ ख़ातिर रखते हैं। लिहाजा हम कहते हैं तौहीद का कायल नहीं है, वो बेईमान है। ज़ाहिरी तौर पर, इस्लामिक तौर पर तो हम दुरुस्त कह रहे हैं। गैर मुस्लिम है जो अल्लाह की तौहीद का कायल नहीं है, मासूम की हुज्जत का कायल नहीं है, वो मुनाफिक है मसलन। ये हम अपने फ़िक़्ह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हिसाब से कह सकते हैं। लेकिन जिस किसी का भी जो भी एक नज़रिया है जो दीनी तौर पर जिसने ज़्यादा उसे कबूल किया है, वो उसका चाहे वो अल्लाह के होने का कायल है या नहीं है, दहरिया है चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो गैर मुस्लिम है, उसका कोई ना कोई ईमान ज़रूर है, यकीन ज़रूर है। अब चाहे वो लोग जो कि लाउबाली मजहब रखते हैं, जिन्हें हलाल हराम का कोई वो नहीं है, पेट भरना मकसद है और अपनी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना जिनका मकसद, उनके नज़दीक भी ये उनका दीन हो जाता है। तो जो उनके इस नज़रिए का मुखालिफ है वो उसके मुखालिफ हो जाया करते हैं। जिनका ये नज़रियात हैं इस्लामी के एतबार से बरअक्स नज़रियात जो हैं, जिनमें काफ़ी सारी बाउंड्रीज मुख्तलिफ ग्रोह बट जाते हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि दहरिये हो सकते हैं, कम्युनिस्ट हो सकते हैं, या फिर उसके अंदर ये भी हो सकते हैं कि ऐसे लोग जो कि बहाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके दरमियान सब एक से ही हैं वगैरह वगैरह। अल्लाह माफ़ करे हम सबको, मौला बचाए शर शैतान व आदा से। तो ये इनके नज़रिए का जो मुखालिफ है ये उसके मुखालिफ होते हैं। तो अब इन नज़रियात में भी एक मज़हब पाया जाता है, वो इनकार करें ना करें, कहते हैं बल्कि इनकार करते हैं, लेकिन वो कहते नहीं कुछ भी नहीं है, सब एक से हैं वगैरह वगैरह वगैरह। एक सूफीज़्म है जिसके अंदर सबको एक सा समझा जाता है, लेकिन सूफीज़्म में भी काफ़ी सारे फ़िरके हैं जिनमें मज़हब अहले बैत अलैहिस्सलाम से लगाव रखने वाले भी हैं। कुछ कहते हैं कोई तवल्ला तबर्रा कुछ नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं। इसमें काफ़ी सारे मज़हब हैं, लेकिन उनके भी नज़रियात हैं। इन नज़रियात को उन्होंने अपने अपने एतबार से, या उनका कोई पीर व मुर्शिद या उनका कोई फ़कीर वली जो भी जिसे वो मानते हैं उसके एतबार से कबूल कर रखा है। अब देखिए बेदीनी क्या होती है? जो जिस मजहब के कवायद व कवानीन होते हैं उसके बरखिलाफ जो भी जाए उसे वो उस मजहब में बेदीनी कहते हैं। जी, मीर राजा खान साहब जैकबाबाद सिंध से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। या अली मदद। सही, हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, या अली मदद। कैसे हैं सही, खैर आफियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बिल्कुल खैरियत, आपकी दुआ है माशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखें, मौला आपको खैर आफियत से रखें। और मौला के सलाम के लिए फोन किया था। जी जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये प्रोग्राम आपके लिए ही है, आपको ही मौला से मरबूत करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। इसका नाम है 14,000 स्पॉन्सर। इसका नाम है 14,000 स्पॉन्सर। जिस टीवी से ये चल रहा है उसका नाम है इमाम हुसैन आलमी टीवी 4, इसका नाम है टीवी का। और प्रोग्राम का वक्त होता है रात में 9:30 से 11:30 के दौरान, 2 घंटे का ये प्रोग्राम है। आप रोजाना कॉल कीजिएगा, रोजाना सलाम पेश कीजिएगा। इस वक्त करबला की तरफ रुख कर लें, दिल पे हाथ रखें, नजरें झुकाएं और मौला को सलाम पेश करें। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम अलैकुम या हुसैन इब्न याबिर इब्न कासिम या सलाम या सलाम या सलाम हुसैन इब्न याबिर मौला सलाम सलाम या सलाम या 14,000
मौला मौला मैं आपकी तरफ से ज़ियारत तिलावत करता हूँ, मेरे साथ साथ दिल में दोहराते रहिएगा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मोमिनीन व इब्ना सय्यदिल वसीयीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका व अला अंसारिकल मुस्तशहदीन मअका जमीआ ला सय्यमा अबल फज़लिल अब्बास या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या बारिल्लाह हमारी मुश्किलात हल फरमा, परेशानियां हल फरमा, माल और रिज़्क़ में इजाफा फरमा, अहले बैत की विलायत पर सच्चे दिल से यकीन रखने की तौफीक अता फरमा, दुनिया आखिरत में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कुर्ब नसीब फरमा, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत पर साबित कदम फरमा, दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, मुहिब्बान अहले बैत को शर्र शैतान व आदा से महफूज फरमा। या बारिल्लाह हमारी जो जो दुआएं हैं कबूल फरमा, बाल बच्चों की सेहत अता फरमा, घर की जो मुश्किलात हैं हल फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत अता फरमा, सलामत रहें, मौला आपको खुश रखें। मीर राजा खान साहब इस प्रोग्राम में मोमिन कॉल करते हैं और प्रोग्राम में अपनी मुश्किलात के हल के लिए नज़र करते हैं, आप भी नज़र करना चाहेंगे? जी सर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इस नज़र को आप किस मौला के नाम करना चाहेंगे? 14 मासूमीन, 14 मासूमों में से कोई एक नाम ले दें, शोहदाए करबला में से कोई एक नाम ले दें। अली असगर, इमाम हुसैन, हजरत अब्बास सारे हैं, मैं किसके नाम बोलूं? चले ठीक है, कर दें तो मेहरबानी होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मौला आपको सलामत रखें। और ये 14 मोमिनीन को आपने व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर करना है हमारा, ताकि और मोमिन भी कॉल कर सकें, और आप खुद भी ये वक्त याद करें, रख लेंगे, और रोज़ाना कॉल करनी है आपने इंशाअल्लाह। मौला सलामत रखें आपको, मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए, जल्द करबला आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 इलाही आमीन। सदा सलामत रहे, मौला खुश रखें आपको, मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए। या अली मौला आपको सलामत रखें, सलामत रहे। कोई भी नज़रिया हो, कोई भी तरीका हो, उसमें एक अकीदा होता है। अकीदा अक़द से, अक़द गिरा बंध जाना, जिस पर यकीन कामिल हो जाए, मोहकम हो जाए, चाहे वो दलील से हो, चाहे वो कट हुज्जती से हो, ये अपनी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। दलील वाला मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मज़हब है। हम इसमें यकीन रख लेते हैं, हमें यकीन है। इसमें देखें, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कुछ के नज़दीक दलील है, कुछ के नज़दीक ज़िद है, कुछ के नज़दीक कट हुज्जती है, कुछ के नज़दीक बड़ों का कहा हुआ है, कुछ नस्ल दर नस्ल जिन बातों में अमल कर रहे हैं, ये उनके अकीदे बन जाते हैं। अक़द, अकीदा अक़द से है, अक़द गिरा लग गई है, दिल उस पर ठुक गया है, बस यही है। अब अगर दलील से मान लेते हैं फिर तो है अक़ल वाला दीन, अगर दलील मानते नहीं हैं और बिला वजह, अच्छा दलील कहते किसे हैं? दलील हर मज़हब के अंदर कोई ना कोई चीज़ हुआ करती है। कोई अक़लियात को फ़कत और फ़कत अपना दीन मान लेता है, जिस तरह फ़लसफ़ा हो गया। अच्छा, कुछ अपनी जो उनकी किताबें ख़ास हैं उनको अपनी दलील मानते हैं। और मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में कुरान और हदीस है, कुरान और हदीस ये दलील हुआ करती है। लिहाजा इन्हीं दलीलों में, और अगर एक दलील देखें सैयद अच्छा सैयद साकिब रिज़ा जाफ़री साहब कराची से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद, या अली मदद। हुजूर कैसे हैं? करम मौला का एहसान है। मौला आपको सलामत रखें। काफ़ी अरसे बाद आपकी आवाज़ सुनने को मिल रही है। हुजूर आज जिस प्रोग्राम में आपकी कॉल मिली है ना, इसका नाम रखा गया है 14,000 स्पॉन्सर।
اور اس میں مومنین کال کرتے ہیں, مولا کو سلام پیش کرتے ہیں. اور اس پروگرام کا دورانیہ ہے 2 گھنٹے پاکستانی ٹائم کے مطابق رات میں 9:30 سے 11:30 کے درمیان. یہ رمضان عظیم میں یہی ٹائمنگ ہے, اگر چینجنگ ہوئی تو بعد میں انفارم ہو جائے گی. اور بہرحال اس میں مومنین کال کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں اور اپنی مشکلات کے حل, پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے. اور چینل میں جو مالی کرائسس چل رہے ہیں جس کے عنوان سے خصوصاً اس پروگرام کو رکھا گیا ہے, نام 14,000 اسپانسر سے بھی کچھ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مقصد اس کا یہی ہے کہ مومنین کو چینل کی مدد اور نظر کرنے پر اس کے نام پر مائل کیا جائے. تو کیا آپ چاہیں گے کہ کچھ حسب توفیق, ضروری نہیں ہے خاص بہت بڑی اماؤنٹ ہو, جو حسب توفیق ہو سکے, کچھ نظر کرنا چاہیں گے آپ؟ جی ضرور ضرور انشاءاللہ, بالکل ایسے ہی. یہ بات آپ, یہ میں ابھی آپ کی بات ابھی فوری طور پر سن تو رہا ہوں, مگر میں اس کو انشاءاللہ غور کرنے کے بعد آپ کو اس کا جواب پیش کر دوں گا. جی وہ آپ سے بہرحال آپ نیت کر لیجئے جب ہو سکے, جس طرح ہو سکے, فقط یہی ہے شریک ہو جائیں آپ. اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اس نظر کو آپ کسی ایک معصوم کے نام کر دیجئے فقط, تاکہ وہ ایک ثواب میں اضافہ ہو جائے. جی کوئی ایک نام لے دیں معصوموں میں سے. آپ کیا فرما رہی, میں کیا کروں؟ یعنی یہ جو نظر کا فقط آپ نے ارادہ کیا ہے نا, اس کو معصوموں میں سے کسی ایک نام لے کر نام کر دیجئے تاکہ مزید اجر آپ کو حاصل ہو جائے. کوئی ایک نام لے دیں. چونکہ یہ ماہ مقدس امیر المومنین کا مہینہ ہے, اس لیے امیر المومنین کی نظر انشاءاللہ کرنا چاہوں گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں, مولا علی علیہ السلام کے صدقے مولا آپ کے مال رزق میں اضافہ فرمائیں, بال بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو اور جلد کربلائے مولا آنا نصیب ہو. مولا جو آپ کے ذہن میں آپ کی تمنائیں مولا قبول فرمائیں. اور یہ ہمارا نمبر آپ نے 14 مومنین کو ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی کال کر کے مولا کو سلام پیش کر سکیں. اس وقت آپ کی آواز کربلا میں, کربلا کی طرف رخ کر لیجئے, دل پہ ہاتھ رکھیں, نظریں جھکائیں, مشکلات کے حل, پریشانیوں کے ازالے, قرب و جوار اہل بیت علیہ السلام کے حصول اور اپنی دعاؤں تمناؤں کی مقبولیت, شر شیطان و عادات سے محفوظ رہنے اور بال بچوں کی صحت و عافیت کے لیے, مولا کے احسانوں کا شکریہ اور اسی ایمان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے وارث کربلا صاحب کربلا مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیجئے. بسم اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا, اس خاص سال کو آپ نے اس عظیم موقع پر یاد فرمایا, اور میں مولا کا بھی شکر گزار ہوں کہ مولا نے یہ موقع عنایت فرمایا. اور چونکہ ان کے در کا ایک ادنا سا شاعر ہوں, اس لیے چاہتا یہ ہوں کہ کچھ اشعار پیش کر کے اپنی حاضری لگوا سکوں. جی بسم اللہ, ہمارے منہ کی بات چھین لی آپ نے, بسم اللہ عنایت فرمائیے. اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں بات شروع کرنا چاہوں گا رہبر معظم کی شہادت کے حوالے سے. آپ اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ کوئی کلام پڑھ لیجئے, مناسب رہے گا, کیونکہ سننے والے مختلف کیفیات کے لوگ ہیں, تو آپ اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ اگر کلام پڑھ لیں تو زیادہ مناسب رہے گا. جی ضرور میں انشاءاللہ بسم اللہ عنایت فرمائیے گا. جی. اور مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی جو سانس لیا کر علی علی کہہ کر, واہ سبحان اللہ, کبھی جو سانس لیا کر سبحان علی علی کہہ کر, واہ خدا کا شکر ادا کر علی علی کہہ کر, واہ 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 واہ, کبھی جو سانس لیا کر علی علی کہہ کر, خدا کا شکر ادا کر علی علی کہہ کر, اور دیا ہے جو بھی خدا نے علی کے صدقے میں, کیا کہنے, دیا ہے جو بھی خدا نے علی کے صدقے میں, اسے جہاں کو عطا کر علی علی کہہ کر. کیا کہنے جناب, کیا کہنے جناب, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. دیا ہے جو بھی خدا نے علی کے صدقے میں, اسے جہاں کو عطا کر علی علی کہہ کر. اور عرض کیا کہ لیا جو کرتا ہے نام علی عقیدت سے, سبحان اللہ, لیا جو کرتا ہے نام علی عقیدت سے, اسے بھی اپنا کہا کر علی علی کہہ کر. واہ 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 واہ, کیا کہنے جناب, کیا کہنے جناب, سبحان اللہ. لیا جو کرتا ہے, بہت شکر گزار آپ کا, لیا جو کرتا ہے نام علی عقیدت سے, اسے بھی اپنا کہا کر علی علی کہہ کر. اور اس سلسلے میں ایک اور شعر سماعت فرمائیے کہ بسم اللہ. علی کا بیٹا ہے دنیا میں حجت آخر, سبحان اللہ. علی کا بیٹا ہے
दुनिया में हुज्जत आखिर उसे भी याद रखा कर अली अली कहकर। वाह 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 वाह, क्या कहने जनाब, सुभान अल्लाह, बेहतरीन। अली का बेटा है दुनिया में हुज्जत आखिर उसे भी याद रखा कर अली अली कहकर। और इस कलाम का मक्ता अर्ज कर रहा हूँ कि बढ़ेगी आबरू साकिब कलाम की तेरे, बढ़ेगी आबरू साकिब कलाम की तेरे, अशार जब भी लिखा कर अली अली कहकर। वाह 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 वाह, क्या कहने जनाब, आपका बहुत शुक्रिया आपका। सदा सलामत रहे, मौला खुश रखें आपको, मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए। नेक्स्ट भी आपकी कॉल की मुंतज़िर रहेंगे। प्रोग्राम का दौरान आपने नोट कर लिया है, नंबर आपके पास है और दोस्तान को भी शेयर कीजिएगा। मौला आपको जल्द करबला आने की तौफीक अता फरमाए और यहीं पर हमारी मुलाकात है इंशाअल्लाह। सदा सलामत, बहुत शुक्रिया, सदा सलामत। शिरकत का शुक्रिया, स्पॉन्सर करने का शुक्रिया, तवस्सुल और जिक्र का शुक्रिया। सदा सलामत रहे, मौला आपको आबाद रखे। अकीदा, ईमान, अक़्द जिस पे दिल जुड़ गया, बंध गया। अब देखें हकीकत अकीदा क्या है, हकीकत ईमान क्या है। देखें हकीकत अकीदा और ईमान तो यकीन ज़ाहिरी बात है, हम मुसलमान हैं तो हमने तो अपनी बात करनी है और हकीकत भी यही है। किसी भी मज़हब में चले जाएं, एंड में कोई ऊपर वाला कहकर पुकारता है, कोई रब्बे मूसा कहकर पुकार लेता है, कोई रब्बे ईसा कहकर पुकार लेता है। बहरहाल सब पुकार रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से अल्लाह को ज़रूर पुकार रहे हैं। जब सब के नज़दीक एक चीज़ अपनी ज़ाती सियासत के अंदर जब जिस पे ज़्यादा लोग मुत्तफ़िक हों तो उसको मरकज़ी हैसियत दे दी जाती है, तो जब जिसके ऊपर सब मुत्तफ़िक हैं उसे अल्लाह क्यों नहीं माना जा रहा। फिर इसके लिए दलीलें होनी चाहिए। अगर दलीलों के अंदर जिसकी दलीलें ज़्यादा मजबूत हों उसकी बात मान लेनी चाहिए। तो यकीन जानिए कुरान मजीद अपने वक्त के लिए ही सिर्फ जिस ज़माने में नाजिल हुआ उस वक्त के लिए ही हुज्जत नहीं था, ये तमाम दुनिया के लिए ता आखिर ज़मान हुज्जत है। और मौजज़ा होना इसका उस वक्त के लिए ही नहीं था, फ़कत जिस ज़माने में नाजिल हुआ था। ये ता आखिर ज़मान हमेशा के लिए ये मौजज़ा है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, इसका मद्दे मुकाबिल है ही कोई नहीं, इसका जवाब कोई ला ही नहीं सकता। लिहाजा तो हमारे पास दलीलें मौजूद हैं, काफ़ी सारे मज़ाहिब की के मनाज़रे कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। मसलन दहरियों का जवाब मादियीन जिन्हें कहा जाता है, वो कहते थे कि कोई भी नहीं है, जिस खुद ब खुद बने हैं खुद ब खुद मर जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका भी जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जनाब उज़ैर नबी अल्लाह को दिया और इसके ज़रिए से पहुँचाया। और पहुँचाने का तरीक़ेकार देखें, ईमान को मुख्तलिफ़ दर्जों में मुख्तलिफ़ अंदाज में तरतीब दिया जाए तो अल्लाह के होने की दलीलें दी गई। कोई है जो कुछ कर रहा है, खुद ब खुद नहीं हो रहा, खुद ब खुद कभी भी कुछ नहीं हुआ करता। अगर कोई चीज़ लुढ़कती हुई भी आ रही है उसका भी कोई सबब है, कोई बेसबब चीज़ है ही कोई नहीं, सबब ज़रूर है, हर चीज़ का सबब है। लिहाजा जनाब उज़ैर नबी अल्लाह ने कहा क्योंकि बात फिर मखलूत होकर आगे पीछे हो जाएगी, लिहाजा एक एक बात करके बाद में रब्त दे देंगे कि किस तरह तरतीब बन सकती है जो हमारे जहन में आई। बात जनाब उज़ैर कहा अल्लाह तू किस तरीके से ज़िंदा करता है, तो ज़िंदा करने का तरीक़ेकार अल्लाह तबारक व तआला ने वहीं पर मौत दे दी। 100 साल वफ़ात, एक भाई ज़िंदा रह गए। 100 साल बाद जब ज़िंदा हुए तो एक हालांकि जुड़वा भाई 150 साल के हो गए, एक भाई वही 50 साल के दोबारा ज़िंदा हो गए। साथ में देखा गधा खाना ख़राब हो चुका है और कहा ये कैसे हुआ, कहा ये अल्लाह ताला की कुदरत है, वो जैसा चाहे वो कर सकता है। लिहाजा एक दलील ये हो गई कि वो मरे हुए को ज़िंदा कर सकता है। अब कोई कहता है, आज भी अभी भी मौजूद हैं लोग जो कहते हैं मरा हुआ ज़िंदा नहीं हो सकता, मरा हुआ अल्लाह ज़िंदा करता है, जिस तरह ज़िंदा करता है ये उसका मौजज़ा है। अब कोई किसी अंदाज में पुकारता चला जाए लेकिन ये अल्लाह के ज़िंदा करने का इनकार कोई नहीं कर सकता। जनाब हबीबा साहिबा ओंटारियो कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, मौला आपको सलामत रखे। बहन प्रोग्राम का नाम 14,000 स्पॉन्सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 का प्रोग्राम 2 घंटे दौरानिया, पाकिस्तानी टाइम रात 9:30 से
11:30 इंडियन टाइम रात में 10 से 12 के दौरान ये 2 घंटे का प्रोग्राम रोज़ाना लाइव होता है रात के वक्त में। मोमिनीन से इल्तमास है कि 3 नंबर है, तीनों नंबर पर व्हाट्सएप पर फ़ौरन कॉल कीजिए और अपने सलाम मौला तक पहुँचाइए। और बहन आप हमारी मुस्तकिल स्पॉन्सर और कॉलर हैं और माशाल्लाह से हमारी डोनेटर भी हैं। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। 14 मोमिनीन को ये तीनों नंबर ज़रूर शेयर फरमाइए ताकि वो भी कॉल करें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के जो क्राइसिस हैं, माली क्राइसिस हैं, उससे निकालने में मुआविन हो सके ताकि और मोमिनीन भी। अब आपकी आवाज़ करबलाई मोहल्ला में, करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नजरें झुकाएं, अपनी अकीदतों का सजदा मौला की बारगाह में सलाम की तौरत पे पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह इनायत फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यिन, अस्सलामु अलैका इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैका या अब्दुल्लाह अल हुसैन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअत अल हुसैन फिल आखिरह, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारत अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन फिद दुनिया वल आखिरह। मेरे मौला मेरे आका चादर में मुक़द्दस के सदक़े सब लोगों की हाजत को बराबर करे, सब लोगों की मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर दे, मेरे बच्चों की हाजत को बराबर करे, तमाम बीमारों को बहक़ याबी देने, बीमार सेहत कामिल अता करे, मख़सूस मेरी वालिदा मुहतरमा को सेहत कामिल अता करे, मुझे और मेरी पूरी फैमिली को इज़्न ज़ियारत अता करे। मौला भाई साहब आप सब लोगों को सैर दुनिया व आखिरत अता करे, अजर अज़ीम अता करे, आपके चैनल को तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया और इल्तमास दुआ। मौला आपको सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आपकी कॉल के नेक्स्ट भी मुंतज़िर रहेंगे और उम्मीदवार रहेंगे और मोमिनीन को नंबर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी कॉल कर सकें, तवस्सुल कर सकें। सलामत रहें, जल्द करबला आने का शरफ हासिल, सलामत रहें। ज़माने की दिगरगुनी के अंदर जब इंसान कभी मुश्किलों में मुब्तला बे हो जाए तो कोई नज़र नहीं आता, किसी ऐसे को पुकारता है इंसान जिस पर उसे यकीन होता है और यही जिसे वो पुकारता है कि वो ला यकीनी की हालत में यकीन बनकर उसके ऊपर नादिल होता है, उसे परेशानियों से बचा देता है। यकीनन ज़ात इलाह उसी को कहा जाता है। बहरहाल ज़हरा साहिबा फैसलाबाद से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम जनाब मुहतरमा ज़हरा साहिबा फैसलाबाद से, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, आपकी कॉल 14,000 स्पॉन्सर नामी प्रोग्राम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के शबाना प्रोग्राम में मिली हुई है और इसका दौरानिया 2 घंटे है। रात में पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9:30 से 11:30 के दौरान इसका दौरानिया है। इसके 3 नंबर्स हैं और माशाल्लाह आपकी कॉल मिली हुई है, तो उम्मीदवार रहूँगा आप हमारी मुस्तकिल स्पॉन्सर हैं, कॉलर हैं। 14 मोमिनीन को ये नंबर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी कॉल करके मौला से अपने दिल के हाल बयान करके दिली तस्कीन हासिल कर सकें। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला में गूंज रही है, करबला की तरफ रुख कर लें, सर झुकाएं, दिल पे हाथ रखें, मौला की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिए और सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अली इब्न अल हुसैन, अस्सलामु अलैका या औलादुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या असहाबुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या कतमल बनी हाशिम। मौला हुसैन आपको आपके बाबा अली मुर्तज़ा का शेख खुदा की शहादत का पुरसा पेश करती हूँ, कबूल व मंजूर फरमा। आमीन। मौला अली के कातलों पे जो मौला अली मुश्किल कुशा के कत्ल के हिस्सादार हैं उन पे लानत करती हूँ बेशुमार। बीबी ज़हरा के कातलों पे लानत बेशुमार। पाक बीबी ज़हरा का हक खाने वालों पे लानत बेशुमार। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में तजीब फरमा। इमाम ज़माना को उस पे सलामती नाज़िल फरमा। इमाम ज़माना को दुश्मनों की नज़र हसद की नबुक से दूर फरमा। अल्लाह इमाम ज़माना पे रहमत नाज़िल फरमा और इमाम ज़माना को अपने रहमत के साथ में रख, दुश्मनों से दूर रखना। मौला हुसैन आपका भी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना का वास्ता। रमज़ान में जितने हाथ उठे हैं सबकी दुआएं कबूल फरमा। जो बीमार है उन्हें शिफा दे। शमशाद अख्तर इजाज अली को याब अब्बास नजीब अब्बास फरमान हबीब
सभी बीमारों को शिफा अता फरमा। इलाही जो बेघर हैं, जो बेऔलाद हैं, उनकी मदद फरमा। ऐ मेरे मौला हुसैन, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, मौला हुसैन हमारी दुआओं पे कुल कह दे। ऐ मौला हुसैन, फुतरस को शिफा देने वाले हुसैन, ऐ राहिब को गा देने वाले हुसैन, ऐ खुद को माफ करने वाले हुसैन, हम भी आपकी रहमत के मुंतजर हैं हुसैन, हम भी आपकी रहमत के मुंतजर हैं, हम पे भी रहम फरमा। ऐ मौला हुसैन, हमारी दुआओं पे कुल कह दे। ऐ मौला हुसैन, हमारी दुआओं पे कुल कह दे। ऐ मौला हुसैन, आपका अपने बच्चों का वास्ता, आपको आपका ज़ादी बीबी ज़ैनब बीबी रुकैया बीबी कुलसूम का वास्ता, हमारी दुआओं पे कुल कह दे। ऐ मौला हुसैन, हम दुआएं मांग मांग के थक चुके हैं मौला, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही मौला, अब हमारी दुआओं पे कुल कह दे मौला। मेरे मौला को अल्लाह वाहिद के वास्ते, इसमें आजम अल्लाह मोहम्मद के वास्ते, अपनी माँ के बाप के भाई की जद के वास्ते, या हुसैन इब्न अली या मदद के वास्ते, या काशिफी कर्ब वजह हुसैन, किशफी कर्ब भी हकी आखी कर हुसैन, मौला इस लैलतुल कदर रातों का वास्ता हमारी मदद फरमा। इन्ना अंज़लना फी लैलतुल कदर व मा अदराका मा लैलतुल कदर, लैलतुल कदर खैरुन फी शहरि तनाज़ मकातु व बिइज़्नि रब्बिल कुल्लि अम्रि सलाम यातामतल फजर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अजरि फजारि मुहम्मद व कायम आलि मुहम्मद। मौला जितनी हम पे मुसीबतें आने वाली है, आप खुद भी वाकिफ है, सब मुसीबतों को दूर कर दे और हम पे रहम फरमा, हम पे रहमत के दरवाजे खोल दे। सलावत अल्लाह मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम, सदा सलामत रहे मौला, आपकी मुश्किलात हल फरमाए, सेहत व आफियत से रहे मौला, आपके घर में जो तकालीफ हैं दूर फरमाए। नेक्स्ट भी कॉल करते रहिएगा, और ये आपका अपना प्रोग्राम है, प्रोग्राम का टाइम आपके जहन में है, वक्त और ये नंबर भी आपके पास मौजूद है 14 मोमिनीन में, ज़रूर शेयर फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आबाद रहें, मौला खुश रखें आपको, सलामत रहें। देखें, एक बात ये होती है, अपने अकीदे को छोड़े नहीं, दूसरे को छेड़े नहीं। कौन से अकीदे को ना छोड़े, कौन से अकीदे को अपने को नहीं छोड़ना, वो जो हक है। हक होने की दलील क्या है? कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती मा तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी। ये अपना अकीदा नहीं छोड़ना। अब इस अकीदे से जो अकीदा मिले उसे साबित कदम होकर पकड़ लें। अगर इसमें कोई गलती इश्तबा है कहीं ना कहीं, तो इंसान के इल्म में, तरक्की में, अकीदे में कहीं ना कहीं इकमाल होता रहता है। बचपन की बातें कुछ होती हैं, जवानी की बातें कुछ होती हैं, और पुख्ता उम्री की बातें कुछ और हुआ करती हैं। इसी तरीके से अकीदा भी दलीलों के तहत ही मजबूत और मुहकम होता है, और इनको तरक्की देनी चाहिए। जी, सैयद जुल्फ़िकार ज़ैदी साहब सऊदी अरब से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, या अली मदद, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, मौला आपको सलामत रखे। करबलाई मोहल्ला में आपकी आवाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में गूंज रही है। ये प्रोग्राम 2 घंटे का है। आप हमारी आवाज़ हमें लौट कर आ रही है, अगर मुमकिन है तो स्पीकर को बंद कर लीजिए या ऐसी जगह रखें कि टकरा कर आवाज़ वापस ना आए हम तक। तो प्रोग्राम 2 घंटे दौरानिए का है। पाकिस्तानी टाइम रात में 9:30 से 11:30, इंडियन टाइम रात में 10 से 12 के दौरान इस प्रोग्राम का दौरानिया है। और मोमिनीन इसमें कॉल करते हैं, मौला को सलाम पेश करते हैं, तवस्सुल करते हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की मुआवनत की नीयत से और अपनी परेशानियां हल करने और अपनी जो जो तकालीफ़ें दूर होने, जल्द ज़ियारत पे आने की खातिर नज़र करते हैं। तो क्या आप भी इस मिशन में शरीक होना चाहेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अपनी इस नज़र को अहले बैत के घराने में से किसके नाम करना चाहेंगे? कोई एक नाम ले दीजिए। शुहदाए करबला, बीबी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मसलन मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मसलन कोई एक नाम ले दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। मौला आपकी तमन्नाएं कबूल फरमाए, दुनिया आखिरत आपको कुर्ब जवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम में नसीब फरमाए और जल्द करबला आने का शरफ हासिल हो, आपकी मुश्किलात हल फरमाए। हमारे इस नंबर को 14 मोमिनीन को आपने ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी कॉल कर सकें और करबला में अपनी आवाज़ पहुँचा के दिली तस्कीन हासिल कर सकें। इस वक्त आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में गूंज रही है। अगर आप हमारे टेलीविज़न को मुलाहिदा फरमा रहे हैं, स्मार्ट टेलीविज़न में भी देखा जा सकता है, यूट्यूब फेसबुक पर भी देखा जा सकता है। इसकी अपनी ऐप है, उसके ज़रिए से भी गूगल क्रोम वगैरह के ज़रिए से, वेब के ज़रिए से भी देखा जा सकता है। तो करबला की तरफ रुख कर लें, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुकाएं, ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सामने है। मौला की बारगाह में अपनी मोहब्बतें और अकीदतें निछावर कीजिए और सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। सलाम पेश कीजिए। मैं आपके साथ तिलावत करता हूँ, साथ साथ दोहराते जाइए। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका व अला अंसारिकल मुस्तशहदीन मअका जमीआ ला सय्यमा अबल फज़लिल अब्बास या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। मौला हमारी मुश्किलात हल फरमा, हमें शर शैतान व आदात से महफूज फरमा, हमारे घरों में जो तकालीफ हैं उन्हें हल फरमा। या बारिला बीमारों को सेहत अता फरमा, जिनके मालो रिज़्क़ में कमी है उन्हें रिज़्क़ की कमी से आज़ाद फरमा, जो बेरोज़गार हैं रोज़ी के वसाइल मुहैया फरमा, जो तंगदस्त है फराखी रिज़्क़ नसीब फरमा, जो बाल बच्चों की तालीम की वजह से परेशान है उनकी परेशानियाँ हल फरमा, जो बाल बच्चों की शादियों अच्छे रिश्तों के लिए परेशान है उनकी परेशानियाँ हल फरमा। या बारिला हम सबको मार्फत अहले बैत अलैहिस्सलाम और मार्फत दीन और इल्म अमल में तरक्की अता फरमा। हमारे घरों में जो परेशानियाँ हैं हल फरमा, बुजुर्गों को सेहत व आफियत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमा, मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, बार बार करबला आने की तौफ़ीक़ अता फरमा, मदीना आने की तौफ़ीक़ अता फरमा, मक्का आने की तौफ़ीक़ अता फरमा, मशहद आने की तौफ़ीक़ अता फरमा, शाम के हालात अच्छे फरमा, बीवी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत नसीब फरमा, हमारी जो मुश्किलात हैं हल फरमा और हमारे घरों में जो तकालीफ हैं दूर फरमा। सलामत रहे, आपकी शिरकत करने का शुक्रिया। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे इंशाअल्लाह और उम्मीदवार रहेंगे कि आप कॉल करते रहेंगे, टाइम को नोट रखेंगे। तकरीबन सऊदी अरब और इराक़ का टाइम तकरीबन एक सा ही है, अगर कोई मुझे इश्तबाह नहीं हो रहा तो आप इंशाअल्लाह 7:30 बजे इराक़ी टाइम होता है, 7:30 से 9:30 के दरमियान टाइम होता है, आप इसमें रोज़ाना कॉल कर सकते हैं। सलामत रहें, आबाद रहें, बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। मौला के चाहने वाले मौला की मोहब्बत में मौला से कांटेक्ट, मौला से रब्ता करते हैं और वसीला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टेलीविज़न का ये प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर बन जाता है। बहरहाल हम ये काम करके कोई एहसान नहीं कर रहे, हम अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। हर किसी का हक़ है कि मासूम अलैहिस्सलाम तक हम हिदायत के सबब बने, वसीले बने, तरीके बने, रास्ते बने, उनके रास्ते की धूल बन जाएं। जी ताहिरा बुतूल साहिबा रावलपिंडी से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि आली मदद। मौला आपको सलामत रखें बहन, मौला आपकी आवाज़ को करबला मोहल्ला में कबूल फरमा रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है 14,000 स्पॉन्सर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4 का प्रोग्राम है, 2 घंटे दौरानिए का प्रोग्राम है। पाकिस्तानी टाइम रात में 9:30 से 11:30 रोज़ाना लाइव होता है। और आज 26 रमज़ान का दिन गुजर गया, 27 की रात लग रही है। 27 का दिन जो है हमारे मज़हब अहले बैत अलैहिस्सलाम में मेराज का दिन नहीं है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से ये खबर शाम में पहुंची थी, तो वहाँ के रहने
والوں نے खुशियाँ मनाई थी इस उन्वान से वो लोग मनाया करते थे, लिहाजा हमारे यहाँ कोई मेराज का दिन नहीं है 27 की तारीख। बहरहाल करबला मोहल्ला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, मौला की बारगाह में करबला की तरफ रुख कीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुकाएं, अकीदतों का नजराना, मोहब्बतों का नजराना, सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या बीबी पाक फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा बिन्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु या इमाम हसन अलैहिस्सलाम या इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैका या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा, बीबी उम्मे कुलसूम सलाम अलैहा। बेशुमार दुरूद सलाम आपके पाक घराने पर और आपके दुश्मनों की बेशुमार लानत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु व ज़कतहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फरज। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फरज। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फरज। मौला हमारे इमाम इस्लाम का तो फरमाए और हम सब बहुत गुनाहगार हैं, हमें मौला के मुंतज़िरों में शामिल होने के काबिल बनाए, हमारे बच्चों को, हमें सबको, सारे मोमिन को, कि हम इस कहलवाने के काबिल हों कि हम मुंतज़िर थे। और जो जो सबकी परेशानियाँ सारे मोमिन की, उनके साथ मेरी जो परेशानी मौला वो हल फरमाए। आप जानते हैं हमारे दिलों के हाल जानते हैं आप, मेरे मौला मदद फरमाए हमारी। जज़ाकल्लाह। मौला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, सदा सलामत रहें। आपका अपना प्रोग्राम है, रोज़ाना आप कॉल कर सकती हैं, टाइम आपने नोट कर लिया है, दौरानिया भी आपको मालूम है 2 घंटे का है, इसी हिसाब से आप कॉल करती रहें। आपकी तवस्सुल को पहुँचाने के लिए मौला की बारगाह में मौजूद है। मौला आपको खुद को भी जल्द करबला आने की तौफीक अता फरमाए, आपकी मुश्किलात हल फरमाए, सदा सलामत। मौला आपको दुआ में याद रख, मौला की बारगाह में हमेशा मेरे बच्चों को याद रखें इंशाअल्लाह ज़रूर। मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें, मौला आपको खुश रखें। बहुत शुक्रिया मौला आपका, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। बहरहाल स्क्रिप्ट के मुताबिक हमारी जो बात है वो टाइमिंग में आपको बता चुका हूँ। मीडिया की अहमियत आप हज़ार मरतबा हमसे सुन चुके हैं, मीडिया को अब खुद समझने की आपको ज़रूरत है। बहरहाल जो बात हम चल रहे थे अक़ीदे की, अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैगाम को ज़िंदा रखने के लिए ज़ाहिर बात है हर कोई अपना अपना काम करता है और हम सब का मकसद यही है, और हम सब आले कार हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की खिदमत का। आले से मुराद खिदमत गुजार, नौकर, ग़ुलाम, खादिम हैं हम सब अहले बैत अलैहिस्सलाम के। इसीलिए बिस्मिल्लाह के माने के अंदर जब हम बा को आला के माने में इस्तेमाल करते हैं, बहरहाल ये नावियों सरफियों की बात है, तो हम कहते हैं शायद ये अल्लाह के लिए मुनासिब ना हो कि हम आले के तौर पे अल्लाह को इस्तेमाल करें, क्योंकि आले का काम होता है खिदमत, और अल्लाह ताला खादिम नहीं है बल्कि मखदूम है, वो उसकी खिदमत की जाती है। बहरहाल तो लिहाजा हम सब ये टेलीविज़न सब ये चीज़ें अहले बैत अलैहिस्सलाम की खादिम हैं, नौकर हैं, ग़ुलाम हैं, लिहाजा हम हक़ के वली तक अपनी आवाज़ें पहुँचाना चाहते हैं। जी सारा जैदी साहिबा लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं ज़ौजा जनाब सैयद जुल्फ़िकार जैदी साहब। जी अस्सलामु अलैकुम, लखनऊ से। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। जी जी क्या हाल है? खैराफियत से बहन, मौला आपको सलामत रखे। जी जी आप सबको भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रोग्राम का नाम है 14,000 स्पॉन्सर।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 आलमी चैनल का ये प्रोग्राम है। इंडियन टाइम के मुताबिक रात में 10 से 12 के दरमियान रोज़ाना लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। इसमें मोमिन कॉल करते हैं, सलाम करते हैं, मौला से तवस्सुल करते हैं और अपनी मुश्किलात के हल के लिए इस प्रोग्राम में नज़र भी करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप में। क्या आप भी नज़र करना चाहेंगी? जी जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। यानी अपनी परेशानियों के हल के लिए, मुश्किलात के हल के लिए मोमिनीन नज़र करते हैं, तो आप भी नज़र करना चाहेंगी? जी मेरे हस्बैंड ने जी दुआ करेंगे। चले ठीक है, बिस्मिल्लाह। करबला की तरफ रुख कर लें, दिल पे हाथ रखें, नजरें झुकाएं, करबला की तरफ रुख करें। करबला मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, तवस्सुल की घड़ियाँ, मौला को सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अपनी मुश्किलात के हल के लिए, बाल बच्चों की सेहत सलामती के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके रोज़गार में बरकत के लिए, खुशहाली के लिए, नस्लों में ईमान अहले बैत अलैहिस्सलाम को हमेशा बाकी रखने के लिए मौला को सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। जी, मैं आपकी तरफ से ज़ियारत तिलावत करता हूँ, आप दिल में पढ़ती जाइएगा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमत ज़हरा सय्यिदत निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा ला सय्यमा अबल फज़लिल अब्बास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मौला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, तवानाई अता फरमाएं। दुनिया आखिरत में आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम को कुर्ब व जवार नसीब फरमाएं। जल्द करबला मौला आने का शरफ हासिल हो। मौला आपके घर में जो मुश्किलात हैं हल फरमाएं, माल रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएं, ईमान और अमल में इजाफ़ा फरमाएं। मौला आपको सेहत व आफ़ियत से माला माल फरमाएं। आपके घर की जो जो दुआएं हैं मौला कबूल फरमाएं, मुश्किलात हल फरमाएं। और जो बच्चे सलामत रहें। मौला आपके बच्चों को सेहत आफियत से रखें और आपको बच्चों की खुशियां देखना नसीब फरमाएं और बच्चों की नस्लों में मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम जारी और सारी रहे। मौला आपके सुहाग को हमेशा सलामत रखें और आपके घर की जो मुश्किलात हैं मौला सलामत हल फरमाएं। आपके बुजुर्गों को सेहत व आफियत हो। मौला आपके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाएं और आपको हमेशा और जब जी चाहे करबला आने की सादत अता फरमाएं। मौला आपको सेहत व आफियत रखें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, शुक्रिया। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे और तवस्सुल फरमाया। 14 मोमिनीन को ये नंबर ज़रूर शेयर फरमाइएगा जिस तरह से आपके दिल को सुकून हासिल हुआ करबला अपनी आवाज़ पहुँचा के, ताकि और मोमिनीन भी एक करार कल्ब हासिल कर सकें, सदा सलामत रहें। मौला आपको सेहत व आफियत से रखें। या अली मदद। मौला की अमान में। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह। मौला के चाहने वाले तो मौला की मोहब्बत, रमज़ान अज़ीम का आखिर यकीनन दिल भरे हुए हैं इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के गम से। और ये अय्याम, ये वो दिन हैं जिन दिनों के अंदर मोमिनीन को अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के महीने, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत के महीने, दो गम जमा हो जाते हैं। एक तो रमज़ान अज़ीम का गम, एक अमीर मुमकिनात मौलाए कुल मौला मुश्किल कुशा अली अलैहिस्सलाम का गम। तो आखिर रमज़ान थोड़ा थोड़ा गमगीन और आँखें पुरनम हुआ करती हैं। मोमिनीन हमेशा सलामत रहें। सबके लिए दुआएं हैं। मौला आप सबके घरों की जो मुश्किलात हैं हल फरमाएँ। तवस्सुल, दुआएं, नमाजें, जो कुरान मजीद की तिलावत जितनी मुमकिन हो सके, इस्तिग़फ़ार, उसमें अपना शेवा बनाएं, अपने वक्त को कीमती समझें, अपने आप को कीमती बनाएं। इसलिए रमज़ान अज़ीम हमारे दरमियान में आया।
लिहाजा अपने ईमान को उस्तवार करने के लिए हमें मुताला होना चाहिए। फ़कत मुताला ही नहीं, काफ़ी सारे ऐसे गुमराह कौन राइटर्स हैं जिनकी तहरीरें लोग पढ़ के असल में हमने दीन इस चीज़ को समझ लिया है कि कोई अचंभी सी बात कोई कह डाले, कोई अछूती सी कोई बात कह डाले, कोई ऐसी बात कह डाले कि जो एकदम से अजीब सी लगे, नई सी लगे और इसमें फ़लसफ़ियाना किस्म की गुफ्तगू बड़ी पसंद आती है, उसके अंदर हक़ व ना हक़ की तमीज़ शऊर हो या ना हो। इसीलिए अल्लाह ने पहले मुअल्लिम को नाजिल किया, बाद में किताब को नाजिल किया। किताब पहले नहीं आई कभी भी। 313 रसूल देख लीजिए, 1,24,000 अंबिया देख लीजिए। लिहाजा मुअल्लिम के बगैर तालीम नाकिस हो जाया करती है। मुअल्लिम को देखिए किस दीन का है, किस मजहब का है, किस तरीके से। लिहाजा अपने आप को संवारने के लिए हुज्जत खुदा से तवस्सुल ज़रूर कीजिए। अपने आप को कभी भी कामिल ना समझिए, हमेशा के नाकिस है और हमारे इकमाल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कुर्ब है और वो हुज्जत जिनके सबब से हम बाकी हैं, जिनके सबब से रहमतें नाज़िल होती हैं, जिनके सबब से हमारे आमाल कबूल होती हैं। आइए मिलकर उन्हें याद करें और उनके ज़हूर की दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए। ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुरान और इतरत की रोशनी में हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में माहाना रुकनियत के ज़रिए इस आलमी मीडिया की इस्तिकामत और तसलसल का सहारा बनिए। ये कोई खर्च नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तक़बिल की तामीर में मुसलसल और बाखबर शिरकत है। इसी लम्हे इस नूर से जुड़ जाएं।